खुराना जी को दोबारा लिंक भेजा है मैंने व्हाट्सएप पे। देखो दिख रहे हैं, आ गए क्या? नहीं, अभी नहीं आया सर। पार्टिसिपेंट तो ऐड हो रहे हैं सर। जी हाँ, पार्टिसिपेंट तो ऐड हो रहे हैं। वेलकम खुराना साहब। गुड आफ्टरनून खुराना सर। Thank you, sir. Thank you. Yeah, good afternoon, sir. नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार सर। Good evening, sir. Kunal sir. This is Ashish Agarwal, Secretary of the नमस्कार खुराना जी। Sir, I think we should start, sir. I think yes. Please, because we are already delayed by 5-7 minutes due to some technical issues. हाँ, वो मुझे लिंक आया था ना, वो प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, मैंने कोई नहीं दूसरे। सर। जी राहुल जी स्टार्ट करिए। So, good afternoon to all the respected members. I see Rahul Gupta, Secretary of Gwalior branch of ICAI, heartily welcomes you all in today's virtual CP meeting on the topic taxation on income from mutual funds, shares and derivatives. I welcome our committee members, CA Amit Kumar Agrawal ji, Chairman, CA Amit Agrawal ji, immediate past Chairman and Sikasa Chairman. I welcome our Secretary Dhanbad branch, CA Rahul Kumar Agrawal ji, and CA Ashish Agrawal ji, Secretary Jabalpur branch. Chairman of Jabalpur branch, CA Madhu Agrawal ji is not with us due to settlements of his father. And Chairman of Dhanbad branch, CA Pratik Ganeriwal ji is also not available with us. So now I welcome our today's moderator and regional council member of CIERC, CA Atul Mehrotra sir. Good afternoon, sir. I welcome our today's honorable speaker, CA Manoj Khurana sir from Agra. And now to deliver the welcome speech, I would like to hand over the mic to our chairman of Gwalior branch, CA Amit Kumar Agrawal ji. Sir. Thank you, Rahul ji. Very good afternoon, all of you. आज ग्वालियर ब्रांच द्वारा जबलपुर एवं धनबाद ब्रांच के साथ मिलकर टैक्सेशन ऑन इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स एंड डेरिवेटिव विषय पर एक डीसीएम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे आज के लर्नेड स्पीकर सीए मनोज खुराना सर, जो कि आगरा से हैं, प्रकाश डालेंगे एवं विषय से संबंधित हमारी जिज्ञासाओं को दूर कर अपने ज्ञान से हमें लाभान्वित करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के मॉडरेटर एवं सेशन चेयरमैन रीजनल काउंसिल मेंबर सी अतुल मेहरोत्रा जी रहेंगे। मैं ग्वालियर ब्रांच की ओर से सी अतुल मेहरोत्रा जी एवं सी मनोज खुराना सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं आज के इस डीसीएम के को होस्ट ब्रांचेस जबलपुर की चेयरपर्सन इन एब्सेंशिया श्रीमती मधु अग्रवाल जी, सेक्रेटरी सी आशीष अग्रवाल जी के साथ साथ मैनेजिंग कमेटी ऑफ जबलपुर ब्रांच एंड धनबाद ब्रांच के इन एब्सेंशिया चेयरमैन सी प्रतीक गनेरीवाल जी, सेक्रेटरी सी राहुल अग्रवाल जी एवं मैनेजिंग कमेटी के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूं। इसके साथ ही मैं आज के इस बीसीएम से जुड़े हुए ग्वालियर ब्रांच के सभी आदरणीय सदस्यों सहित सभी सदस्य महानुभावों का स्वागत, ससम्मान स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सभी को। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के मॉडरेटर एवं सेशन चेयरमैन सीए अतुल मेहरोत्रा जी, वैसे तो हम सभी परिचित हैं, फिर भी मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन सर का देना चाहूंगा। बहुत संक्षेप में करिएगा सर। सर म्यूट हो गए सर, आप स्पीकर म्यूट। सी अतुल मेहरोत्रा जी is a senior chartered accountant and partner at Arsen and Company, ARSN and Company, a professional services firm with offices in Ranchi, Lucknow, Varanasi, Kanpur and Delhi.
having head office at Varanasi, UP. Mr. Mehrotra has 31 years of professional experience in audit, tax, strategic advisory, and other company law related matters. Mr. Atul Mehrotra has been elected as a regional council member of CIRC of ICI for 2019 to 2022 and as vice chairman for 2020-21. He has been designated as deputy convener of state level task force by committee for members in practice of ICAI for the year 2020-21 for Uttarakhand. Mr. Mehrotra has been associated with a host of organizations and held various positions of responsibility throughout his career. Recently, he has been elected as a vice president of Kanpur GST Chartered Accountant Association. Most recently, he was the president of Kanpur Income Tax Bar Association, a premier professional organization established in 1952. Mr. Mehrotra is also a member of other prestigious organizations such as the Indian Industries Association, Merchant Chamber of Uttar Pradesh, and Rotary Club of Kanpur West. Mr. Mehrotra is also an active social worker and is a regular volunteer as well as contributor to Roti Bank, an organization aimed at providing hygienic meals to urban poor. He has also been associated with numerous social activities by JCI, whose membership has been held for 20 years. इसके साथ साथ श्री अतुल मेहरोत्रा जी 2020-21 में ग्वालियर ब्रांच के एक्स ऑफिशियो मेंबर भी रह चुके हैं. मैं पुनः उनका स्वागत करता हूं. अतुल मेहरोत्रा जी का वेलकम करता हूं. And I handed over to Sri Atul Mehrotra, sir. Thank you, Amit ji, and I especially thanks for briefing my profile. Very respected Purana ji, my elder brother from Agra. All the three branches with their team, with their young team, and the most important thing is the young team of all the three branches. Unfortunately, the chairperson of Jabalpur branch is not with us today due to some casualty in his family. So we pray for the God for the entire family to give the strength to the family. Good afternoon to all of you, my seniors in the profession, friends, boys and girls. It is indeed a pleasure for me to be with all of you, either through a virtual meeting or through the physical meeting, because whenever I visited Gwalior, Jabalpur and Dhanbad, you people are so nice persons that I am overwhelmed with your hospitality. And Swami Vivekanand ji ने एक बार कहा था कि knowledge is our strength and strength is life. So our ICI along with the branches is regularly managing for updating our members through the virtual meetings. Even after a long period, few physical meetings have also started. So before coming on the topic, I just wanted to share 2-3 small things that CIRC has launched a program on Wednesday. So I request the girls, female members from our entire CIRC, if you are interested to share your experience, जैसे कि आज हमारे साथ पुराना जी शेयर कर रहे हैं, तो आप प्लीज फील फ्री टू कॉल मी और थ्रू योर ब्रांच ऑफिस बियरर्स मेरे को बता दीजिए और हम लोग उसको प्लान करके जरूर अपने टैलेंट को, नए टैलेंट जो हमारे न्यू जनरेशन के आ रहे हैं उनको कैसे आगे बढ़ाएंगे. तो इट इज फॉर द members. All the members will join the program, but the speaker and moderator will be only the girls and female members. Another very important program which has been started by our team of CIRC this year, that is Friday. On every Friday we are having Kaam Ki Baat.
Kaam Ki Baat, it was started I think 2 months back, and every Friday we are of the view that a lot of law provisions are there. We are learning. There may be some overflow of the information, of the knowledge. Our members may feel like that, though it is not reality, but members may feel like that. So we started discussing the opportunities for our members on Fridays. Kaam Ki Baat, वो opportunities relating to GST हो सकता है, इनकम टैक्स हो सकता है, वैल्यूएशन हो सकता है, फॉरेंसिक हो सकता है, एंड जो मेरा आज जैसे खुराना जी के साथ जो डिस्कशन है वो बहुत बड़ा चैलेंज है. मेरे को पूरा विश्वास है कि आई एम क्लोजली एसोसिएटेड विद शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड सिंस लास्ट at least 15 to 20 years, and still we find very difficult whenever we are going to file our personal return also. It is a big challenge for all of us, and whenever we go for filing of the return of our client, then we see he just came a bundle of bank statements and a statement from the share broker. ये है साहब, अब आप जानो कैसे करना है. जब आप करते हो तो पता चला था उसका जो डिलीवरी बेस्ड काम है वो तो टर्नओवर की लिमिट से, टैक्स ऑडिट की लिमिट से बढ़ गया, और वो तो बोले हमारा तो साहब कुछ है ही नहीं, साल भर में कुछ कमाया ही नहीं हमने, हमें तो सिर्फ 50,000 रुपए का फायदा हुआ साल भर में, या 2 लाख का हुआ या 5 लाख का हुआ. अब उनको आप बताओगे कि तुम्हारा तो टर्नओवर 5 करोड़ पहुंच गया है, यू आर कवर्ड अंडर द ऑडिट. तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है, एंड दिस मे बी आल्सो ट्रीटेड एज ए अपॉर्चुनिटी एज वेल, बिकॉज आई एम श्योर दैट यंग जनरेशन, स्पेशली यंग जनरेशन, are investing directly or indirectly in equity market or in derivatives. They are earning or through the mutual fund. So today's topic is very important, and we all are very fortunate that Manoj Khurana ji is a very experienced person, and this topic is he is having the mastery on this from last more than 30 years. So I requested Manoj ji, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अवर 3 ब्रांचेस जिन्होंने कभी आपको सुना नहीं है, ग्वालियर, जबलपुर एंड धनबाद. एंड ही इमीडिएटली, दो ही वाज हैविंग वेरी टाइट शेड्यूल बिकॉज ही इज हैविंग a lot of pressure of the income tax cases and the hearings, which but anyhow he managed. So thank you sir. और हमारे खुराना जी के लिए 2 शब्द भी हैं, 2 लाइनें भी हैं मेरे पास. जो दिल के हैं खूबसूरत, जो दिल के हैं खूबसूरत, ऐसे लोग खुदा ने कम बनाए हैं, और जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज हमारी महफिल में आए. सो बहुत बहुत स्वागत आपका. और किसी भी प्रोग्राम की सफलता हमारे मेंबर्स, हमारे ऑडियंस पे डिपेंड करती है. तो सर, वर्चुअल मीटिंग सिर्फ सीपी आवर्स के लिए हम लोग कर रहे हैं, या हमारे मेंबर्स, गुस्ताखी माफ हो, अधिकतर यही माना जाता है कि सिर्फ सीपी आवर के लिए हो रहा है. तो ऐसा नहीं है सर. मैंने भी पिछले 2 सालों में, इस कठिन समय में, कोरोना के समय में, जो भी वर्चुअल मीटिंग हुई है, I always try to listen completely, fully. और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस उससे आता है कि जब कभी कोई इशू दिमाग में आता है तो आपको लगेगा कि एक खुराना जी ने या मिस्टर एक्स ने, मिस्टर वाई ने किसी प्रोग्राम में ऐसा बोला था, तो आपको एक सपोर्ट मिल जाता है. भले ही आप उतना पढ़ नहीं पाए, कैसे नॉलेज हमें कैसे मिलती है, हम या तो पढ़ें या दूसरे से सुने, और या हम गलतियां करके खुद सीखें. तो ये इतना अच्छा माध्यम है कि पूरे देश के लर्नड स्पीकर्स हमारे साथ इस वर्चुअल मीटिंग में आए. तो इट इज ए अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू ऑल द ब्रांचेस फॉर हैविंग सच a nice speaker and nice topic, and over to MOC for further proceedings. Thank you. Thank you, sir. And now to introduce our guest speaker, CA Manoj Khurana sir, I would like to hand over the mic to CA Rahul Kumar Agrawal ji, Secretary of Dhanbad branch. Thank you, Rahul sir. I, CA Rahul Kumar Agrawal, Secretary Dhanbad branch of CIRC of ICI, on behalf of Managing Committee of Jabalpur, Gwalior and Dhanbad, take this opportunity to introduce today's speaker, CA Manoj Khurana sir. CA Manoj Khurana sir is a BSc with biology. He completed CA course in November 1988. He is a senior partner in Manoj Khurana and Associates. He is practicing in the field of direct tax audit for more than 32 years.
He is regular faculty of GMCS of ICI for more than 20 years. He is regularly visiting in various seminars conducted for members by ICI. He has been guiding the students in various CICASA programs. He has taken part in budget analysis programs on radio and television. Apart from professional activities, he loves to read spiritual books, videos, and enjoy playing carom and many more. So I welcome C. Manoj Khurana sir to share your knowledge with us. Thank you very much, Rahul Bhaiya. Thank you very much. Now I would like to hand over the mic to our speaker, Honorable CA Manoj Khurana sir, to take today's session and enrich our knowledge with his immense experience. Sir. Thank you, Rahul ji. बल्कि डबल पावर ऑफ राहुल जी, राहुल गुप्ता जी एंड राहुल अग्रवाल जी, और हमारे एवर चार्मिंग अतुल मल्होत्रा जी, जिन्होंने अभी मुझे 3-4 दिन पहले बोला था कि सर ले लो, तो मैंने कहा मैं तो अवश्य ले लूंगा, क्योंकि मेरा तो प्यार ही चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन मेरे को जब भी आवाज देती है तो मैं हमेशा आ जाता हूँ। एक प्यार तो मेरा घर पे बैठा है, लेकिन दूसरा प्यार मेरा निश्चित रूप से ये चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना कोर्स है। अमित अग्रवाल जी चेयरमैन जो आज होस्ट कर रही है, अगेन फेसिंग चार्मिंग फेस। आपके यहाँ तो अमित जी मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, शायद आप जी सर। एक तो 3-4 साल पहले ही आया था जब कमिश्नर सोनी जी थी, और एक शायद 12-13 साल हो गए नितेश गुप्ता वगैरह हम लोग आए थे। तो मेरा 3CD पे आपके यहाँ रहा था, करीब 3 या 4 घंटे का डिनर तक चला था वो। तो वंस अगेन थैंक यू मुझे टाइम देने के लिए, मुझे कुछ और याद करने के लिए, कुछ और समझने के लिए। अतुल जी सच में बताऊं कि जब भी इंस्टीट्यूट मुझे याद करती है, दोबारा से टाइम देती है, तो मेरा एक रिवीजन होता है। और मैं यकीनी तौर पे बताऊं, ऐसा सबके साथ होता है या मेरे साथ होता है, मुझे लगता है सबके साथ होता होगा। मैं जब शुरू में 25-30 साल पहले लेक्चर देता था, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे इनकम टैक्स पूरी आती है, तभी तो ये लोग बुलाते हैं। 5-7 साल और बीते तो मुझे लगने लगा मुझे कुछ कम इनकम टैक्स आती है, क्योंकि मैं डेप्थ में और जाने लगा तो पता लगा कि मुझे कुछ कम आता है। 2-4-5 साल पहले की बात है कि मुझे ऐसा लगने लगा मुझे बहुत ही कम आती है। और मुझे आज कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी बोलने की हिम्मत करता हूं। यकीनी तौर पे जब हम लोग जितनी डेप्थ में जाते हैं ना, तो ये महसूस होता है कि इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। पूरा समुद्र है, पूरी खाई है, एक एक शब्द का, एक एक कॉमा का, फुल स्टॉप का जब हम अंतर निकालने लगते हैं और देखते हैं कि एक्ट में कितनी पावर्स हैं, कितना डेप्थ है, तो हमें पता चलता है कि बहुत मुश्किल है। अतुल जी, अमित जी, मैं शुरू से इसके साथ साथ ना वेदों का बहुत अध्ययन करता था। जब मैं 4 वर्ष का था तब से मुझे वेदों का बड़ा रुचि थी, तो मुझे अपने प्रोफेशन में भी उसमें काफी हिम्मत मिली, बल मिला। और इस लॉकडाउन में तो मेरा ये हिम्मत भी पूरी कर दी कि वेदों को मैंने अच्छे से पढ़ लिया। तो जो ये मेरी भ्रांति थी, मैं सोचता था कि मुझे बहुत बार पढ़ के बहुत समझ में नहीं आता है, कुछ कम समझ में आता है, तो वो वेदों ने पूरा किया। वेदों का एक मंत्र बताता हूं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो मंत्र समझ में आए ना आए, लेकिन मंत्र अपने आप में समझ में आएगा। वो मंत्र है पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। इसका मतलब हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी पूर्ण नहीं है, हम सब अपूर्ण है। तो ईश्वर के पास पूरी ताकत है, पूरी शक्ति है, तो हम सब अपूर्ण है और अपूर्ण ज्ञान लेके ही बैठे हैं और थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं कि हमें ज्ञान पूरा है, लेकिन उतना ही ज्ञान हम बांटते हैं जितना हमें समझ में आता है। उसके बाद भी मैं हर मीटिंग में महसूस करता हूं कि कोई ना कोई चीज ऐसी अनटच रह जाती है जो मुझे मेंबर से फिर से सीखने को मिलती है कि ये जरूर मैंने स्किप किया था, वो जरूर स्किप किया था। डेफिनेटली आज मैं उस विषय पे बोलने वाला हूं कि पिछले 2-3 सालों में, पहले भी करते थे, अब तो लोगों ने इतना शुरू कर दिया इस प्लेटफॉर्म को यूज करना, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स। कोविड के बाद क्या हुआ है कि लोगों के बिजनेस तो कम हुए, लोग घर पे भी बैठे,
सिर्फ टेक्नोलॉजी चल रही थी और हमारा शेयर मार्केट चल रहा था, बाकी सारा पूरा विश्व खत्म हुआ था, शेयर मार्केट चल रहा था। तो जितने भी बिजनेस खत्म हुए उनके बच्चों ने, उन्होंने क्या किया, सिर्फ शेयर मार्केट खेली और कुछ नहीं किया, और यही रीजन रहा, ये बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। मार्च 20 के बाद आज देख लीजिए क्या पोजीशन हो गई है। 25,000 पे पहुंच गए थे हम, आज 56-57,000, आज तो 57,000 भी पार कर गया। तो इस तरह से शेयर मार्केट बड़ी तेजी से हुआ है। अब शेयर मार्केट तेजी से उछला है तो निश्चित रूप से ट्रांजैक्शन भी बहुत रहे होंगे। हम लोगों को आगे प्रॉब्लम्स बहुत आने वाली हैं जब हम रिटर्न्स भरेंगे। अतुल जी ने ठीक कहा कि वो कोई एसएससी आता है, इतना बंडल ऑफ ट्रांजैक्शंस के ले आता है, इतने बंडल पेपर के लाता है, तो पहले तो सिर दर्द होने लगती है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेबी जिस तरह से रेगुलेट कर रही है और एनएसडीएल जितनी अच्छी तरह से रेगुलेट कर रहे हैं, तो उसकी जिस्ट और उसका जो एक्सेल फॉर्मेट है वो भी हमारे लिए अवेलेबल रहता है। लेकिन मुश्किल क्या है कि इस ट्रांजैक्शन में एक ट्रांजैक्शन हो तो पता चले, एक टैक्स लगे तो पता चले, लेकिन इतने टैक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, कहीं शॉर्ट टर्म हो रहा है, कहीं लॉन्ग टर्म हो रहा है, कहीं F&O हो रहा है, कहीं स्पेकुलेशन हो रहा है। ये इतनी फ्रीक्वेंसी के बाद हमें पता भी नहीं चल पाता कि ये ट्रांजैक्शन की नेचर क्या है। आज उस नेचर को समझते हैं और इसकी टैक्सेबिलिटी को समझते हैं। मैं इसमें स्लाइड शेयर कर पाऊंगा? मेरे ख्याल से अगर मुझे परमिशन मिलेगी तो मैं कर पाऊंगा। हो जाएगा, आप शेयर करिए सर, वो हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। मैंने बिल्कुल देख लिया, वो शेयर करने का ऑप्शन है जी उसमें। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे होस्ट इतने अच्छे हैं कि उन्होंने सब अरेंजमेंट कर लिए होंगे पहले से ही। अरे सर, जी सर जी। तो सर शुरुआत करते हैं। मैं ना बीच बीच में अपना स्लाइड हटा दूंगा क्योंकि आप लोगों के चेहरे पूरे पूरे नजर आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं भी बीच में कोई दीवार नहीं बनना चाहता। तो स्लाइड हमने शेयर्स की अर्निंग तो समझ ली, एक म्यूचुअल फंड की अर्निंग समझते हैं क्योंकि उसमें बहुत तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। शेयर्स और म्यूचुअल फंड दोनों की एक साथ मैं बात करूंगा क्योंकि वहां भी इक्विटी है और वहां भी इक्विटी है। शेयर्स की अर्निंग लॉन्ग टर्म पहले एग्जाम थी, हमें मालूम है डिविडेंड एग्जाम थे, अब दोनों ही एग्जाम नहीं है। 2018 में जेटली साहब ने कह दिया कि अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी टैक्स लगेगा, हम लोगों को मालूम है। टैक्स किस तरह से लगेगा इस पर आता हूं। इक्विटी तो इक्विटी होती है, हम समझते हैं। म्यूचुअल फंड जरूर दो तरीके के होते हैं, एक इक्विटी ओरिएंटेड और एक डेट ओरिएंटेड। पहचान क्या है? पहचान करने के लिए जो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है उसमें 65% से कम इक्विटी की होल्डिंग होनी चाहिए, तो वो डेट ओरिएंटेड फंड है, उसमें टैक्सेशन डिफरेंट तरीके का होता है। इस चीजों को मैं जल्दी इसलिए कवर करूंगा क्योंकि यहां पर हम बड़े कंफर्टेबल हैं, यहां हमें मालूम है। दूसरी पहचान के लिए मैं बताऊं कि जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड है उसमें एसटीटी लगता है। अगर हमें फिर भी नहीं समझ में आया तो नीचे हम देख सकते हैं, अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग गया तो वो इक्विटी के दायरे में आ गई, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन नहीं है तो वो डेट के दायरे में आ गई। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में क्या है, ऐसे शेयर्स में शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक ही बात। जब हम लिमिटेड कंपनी के शेयर्स की बात करते हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं जहां पर ट्रांजैक्शन में एसटीटी लग जाता है। इसमें दो तरह की चीजें हैं। जब हम शेयर्स की बात करते हैं तब परचेज पे भी एसटीटी लगा होना चाहिए और सेल पे भी होना चाहिए, मतलब जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी एसटीटी होना चाहिए और परचेज के टाइम भी एसटीटी होना चाहिए। जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो जो हम ट्रांसफर करते हैं यानी कि सेल करते हैं या रिडम्पशन करते हैं या स्विच करते हैं, तीनों ही चीजें ट्रांसफर की डेफिनेशन में आती हैं। कई बार हमको गलती हो जाती है, यहां पर हम सीएस का रोल बहुत बढ़ जाता है। क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है वो फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन करता है म्यूचुअल फंड्स में, वो स्विच करेगा, वो रिडीम करेगा या वो एक स्कीम से दूसरे स्कीम में जाएगा। हम बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 45 जानते हैं कि ट्रांसफर की डेफिनेशन में साफ है कि अगर हम स्विच कर रहे हैं किसी चीज को, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ले जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पर हमारा कैपिटल गेन अराइज हो जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की। वहां पर हमें मालूम है जब टाइम पीरियड अगर 12 महीने से कम है तो इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे, और 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2018 से पहले 31 जनवरी जब जेटली जी ने भाषण दिया था फर्स्ट फेब को, उससे पहले वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता था सेक्शन 1034 में। आज की डेट में वो एग्जेम्प्ट नहीं है, उस पर 10% टैक्स है। हाँ, एक एग्जेम्पशन उन्होंने दे रखी है 1 लाख रुपए की, उस 1 लाख रुपए को हम अवेल कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में। शॉर्ट टर्म के कैपिटल गेन के केस में 15% फ्लैट रेट है, और इसमें भी पीरियड 12 महीने से अगर नीचे हमने बेचा तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और 12 महीने के बाद अगर इक्विटी ओरिएंटेड ट्रांजैक्शन है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 15% और 10% ये स्पेशल रेट है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 111A एंड 112A। वहां पर इन्होंने स्पेसिफाइड कर रखा है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है विद एसटीटी ट्रांजैक्शन देन 10% टैक्स लगेगा इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म, और 15% फ्लैट लगेगा इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में क्या है कि अगर तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वहां इंडेक्सिंग मिलेगी आपको, लेकिन शेयर्स के केस में आपको इंडेक्सिंग नहीं मिलेगी। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है डेट ओरिएंटेड तो वो आपकी इनकम का पार्ट हो जाएगा। यहां 2-3 चीजें मुझे बतानी है। मैं अपनी इस बीच की दीवार को हटा देता हूं। सेक्शन 111A और 112 की थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। नंबर 1, जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं तो एक दिन तो मुझे भी एहसास हुआ था ये उन लोगों का क्या होगा जो बहुत पुराने शेयर रखे हुए हैं, जिन्होंने और आज की डेट में करोड़ों रुपए वो कमा चुके, लाखों रुपए कमा चुके, उन पे ये टैक्स लगाने जा रही है गवर्नमेंट। लेकिन अगले पल जेटली साहब ने एक ग्रैंडफादर वैल्यू बोल के मुझे खुश कर दिया था। ग्रैंडफादर अप्रोच क्या है? ग्रैंडफादर अप्रोच आई क्यों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 31 जैन 2018 को जो भी रेट थे और जो भी वैल्यू आपकी बन गई उन शेयर्स की, उस पे टैक्स गवर्नमेंट नहीं ले सकती, क्योंकि ये प्रोविजन किस तरह के प्रोविजन हो जाते हैं, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स के हो जाते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेना चाह रही है। तो 1 फरवरी को जब इसका बजट आया, यूनियन बजट जब जेटली साहब ने प्रस्तुत किया था, तो उन्होंने बोला कि आज से पहले जितना भी आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी ओरिएंटेड की बात हो रही है, जो आज तक एग्जेम्प्ट होता था और अब एग्जेम्प्ट नहीं है, तो आज तक जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो सारा एग्जेम्प्ट रहेगा आपके हाथ में। तो तभी ये ग्रैंडफादर अप्रोच थी। तो ग्रैंडफादर अप्रोच को हम इस तरह से लें कि उस दिन तक का प्रॉफिट हमें सेपरेट करना पड़ेगा, मतलब उस दिन की जो मार्केट वैल्यू होगी तो वहां से हमें लेना है, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू नहीं मिल रही है। दूसरी बात, यहीं से एक बात समझनी पड़ेगी 11A और 112 के रेफरेंस में। हम लोग जनरली ये बिलीव करते हैं कि जैसे 5 लाख रुपए की लिमिट है, 5 लाख रुपए की लिमिट नहीं, आपको भी मालूम है 2.5 लाख रुपए की लिमिट है। तो जब हम इक्विटी से या शॉर्ट टर्म से या लॉन्ग टर्म से कमाते हैं, जब स्पेशल रेट लग रहा होता है 111A में या 112A में, तो ये सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिलती है, मीनिंग देयर बाय कि वो हमारी लिमिट 2.5 लाख रुपए होती है। नंबर 1 प्रोविजन। नंबर 2 प्रोविजन कि अगर इसमें नॉन रेजिडेंट है दोनों केस में, तो उसको भी ये जो बेसिक एग्जेम्पशन है 2.5 लाख रुपए की, वो उसको अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब उसको डे 1 से अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसको टैक्स वहां पर देने पड़ेंगे। तो 2 बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। एक बात और क्लियर करूं, 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन 11A और 112 में आपको 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन जरूर मिल जाएगी। इसका मतलब हो गया, सपोज करो किसी का 3 लाख रुपए का कैपिटल गेन है सिर्फ, तो उसको फर्स्ट 2.5 लाख रुपए तो माफ हो जाएंगे, रिमेनिंग अमाउंट पे उसको 10% या 50%, वट एवर द केस में भी, शॉर्ट टर्म के केस में 15% और लॉन्ग टर्म के केस में 10% और वहां पर 15% बेसिक एग्जेम्पशन वो रहेगी उनके वो वाली। अगली स्लाइड लेता हूं।
अब हम बात करते हैं डिविडेंड की। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। डिविडेंड के केस में मेरे ख्याल से मैं स्लाइड लेना बंद कर दूं, आप लोग सीधा सीधा मुझे ही सुनो। क्यों अतुल जी? जब हम यस सर, ठीक है सर, ठीक है, जब हम बेबाक ये बोल ज्यादा सकते अच्छा होता है। जब हम बेबाक बोल सकते हैं, एक्चुअली मेरे ख्याल से स्लाइड बीच में डिस्टर्ब ही करती है लोगों को, क्योंकि स्लाइड की तरफ मैं देखता नहीं, मुझे वैसे ही ठीक रहता है। ठीक है सर, ऐसे करिए आप। ऐसे ही ठीक रहता है, क्योंकि मैंने कई लेक्चर सुने तो वो ज्यादा समझ में आते हैं, ज्यादा पल्ले पड़ते हैं। स्लाइड तो सर मैं ग्वालियर ब्रांच को भेज दूंगा, तो अमित हाँ जी मेरे, और जी सर, जी सर, मेरे को भेज दीजिएगा, वी विल शेयर। राहुल जी और अमित जी और जी जी जी, अतुल जी हाँ आप ट्रांसफर कर जी सर, दीजिएगा। बिल्कुल कर देंगे सर। अब हम डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड हमने जब सीए प्रैक्टिस शुरू करी थी, एग्जाम्प्ट होते थे, फिर गवर्नमेंट को लगा इसे एग्जाम्प्ट मत करो, इसे टैक्सेबल कर दो, फिर उन्हें लगा एग्जाम्प्ट कर दो, तो गवर्नमेंट ने कई बार ट्विस्ट करती रही, डीडीटी लगाती रही, फिर सेक्शंस और आए कि उन्होंने कहा डीडीटी तो लग जाता है, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे बड़े टैक्स पेयर हैं जो टैक्स की चोरी करते हैं, वहां तो डीडीटी तो खत्म हो जाता था 18% 19% पे, लेकिन टैक्स ब्रैकेट आपका 35% रहता था या 33% रहता था, तो वहां भी उन्हें लगता था 30% या 15% की टैक्स की चोरी हो रही है। तो अगेन उन्होंने सेक्शन 115 BBDDA लिया है। वहां पर क्या कहा, अगर जिसके 10 लाख से ऊपर के डिविडेंड्स हैं वो अगेन टैक्सेबल है, बिकॉज वो जो डीडीटी के बाद भी टैक्स डिविडेंड्स आ गए, वो अगर बड़े हैं तो अगेन उसे टैक्स लगाने की कोशिश करी गवर्नमेंट ने आज से 2 साल पहले। बट अब चैप्टर ओवर, डीडीटी कोई चीज नहीं है, तो 115 DDBA जो सेक्शन लाए थे 10 लाख रुपए तक जो एग्जेम्पशन थी, वो भी खत्म कर दिया। इट मींस नाउ डिविडेंड इनकम इज फुल्ली टैक्सेबल बिकॉज ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज गॉन। अब दो तरीके से डिविडेंड मिल सकते हैं हमें, एक तो म्यूचुअल फंड से और एक शेयर से। तो दोनों के टीडीएस के प्रोविजंस अलग अलग हैं, वहां 194 से गवर्न होता है, वहां 194K से गवर्न होता है। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, दोनों को इसलिए अलग कर रखा है कि आगे कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं कि उन्होंने इस तरह के प्रोविजंस कर रखे हैं। कुछ चीजें यहां पर ना जो हम मेंबर्स को कंफ्यूजन अराइज होते हैं, वो मैं आज कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। बहुत सारे केसेस में हमें ये लगता है कि ये शेयर्स इनकम है, ये इन्वेस्टमेंट वाली है या ये बिजनेस इनकम है। तो पिछले 15-20 साल के सफर में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर्स किए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स ये ऐसे रहे कि वो जो आपके शेयर्स की इनकम थी उसको कभी तो इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करते रहे, और कभी रेवेन्यू ओरिएंटेड होता था तो उसे बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट करते रहे। तो कई बार एसएससी के फेवर में ये बात जाती थी और कई बार अगेंस्ट जाती थी, लेकिन वो आईटीओ हेड हो जाता था ये डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर दिस इज ए कैपिटल गेन और दिस इज ए बिजनेस इनकम। तो वो बहुत सारे डिटरमाइनिंग फैक्टर थे कि कितना वॉल्यूम किया, किस शेयर्स की ट्रेडिंग जल्दी जल्दी हो रही है, आपकी इंटेंशन क्या है, आपका लॉजिक्स क्या है, आपका काम करने का तरीका क्या है, परचेज और सेल्स का वॉल्यूम निकालते थे, उसका परसेंटेज निकालते थे। तो बहुत सारे मेथड इनकम टैक्स ने बना रखे थे। तो 2007 में एक सर्कुलर लाया सीबीडीटी ने कुछ गाइडलाइंस दे दी आईटीओस के लिए कि आप इस मेथड को फॉलो करेंगे, आप ये रेशियो डिटरमाइन करेंगे टू जज वेदर इट इज ए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि कैपिटल गेन हेड में जाना है या बिजनेस इनकम में जाना है। तो अगेन ये बहुत सालों तक ड्रामा होता रहा, तो आईटीओ अगेन अपने प्रो डिपार्टमेंट रह के आपकी इनकम को कभी इन्वेस्टमेंट में कभी बिजनेस में डिटरमाइन करने लगे वॉल्यूम देखते हुए। अब वॉल्यूम का क्योंकि कोई फैसला नहीं होता था कि एक वॉल्यूम, अब अतुल जी अभी बता रहे थे लाखों के डीलिंग करते हैं ये तो शेयर्स की, अब इनके लिए तो हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट हो, आप लाख तरह के ट्रांजैक्शन को भी इन्वेस्टमेंट की तरह रख सकते हैं, और कोई आदमी 100 ट्रांजैक्शन भी इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं रख सकता। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहेगा। सीबीडीटी ने 2016 में एक सर्कुलर नंबर 6 लाए थे, बड़ा प्यारा सर्कुलर है अतुल जी। उन्होंने कहा अब ये एसएससी डिसाइड करेगा कि उसने शेयर्स को किस तरह से डील करना है, वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट और स्टॉक इन ट्रेड। अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखेगा तो वो उसका ट्रीटमेंट बिजनेस
उसकी तरह हो जाएगा, बिजनेस इनकम की तरह, और अगर वो इन्वेस्टमेंट की तरह रखेगा तो इन्वेस्टमेंट की तरह से कैपिटल गेन ट्रीट हो जाएगा। लेकिन ये एसएससी के ऊपर छोड़ दिया कि वो क्या करता है, बट एसएससी के ऊपर उन्होंने छोड़ा ओनली टू द एक्सटेंट जो लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स हैं उसमें। एक बात। दूसरी बात, एसएससी अपना इरादा हर साल नहीं बदल सकता, अदरवाइज तो टैक्स कैपिटल गेन में बच रहा है तो उधर चला जाएगा और बिजनेस में बच रहा है तो उधर चला जाएगा। उन्होंने ये स्कोप नहीं छोड़ा, कंसिस्टेंसी रहेगी। अगर वो बिजनेस की तरह रखता है, स्टॉक की तरह रखता है तो स्टॉक की तरह ट्रीट करेगा, अदरवाइज वो बिजनेस की तरह करेगा। ठीक है, ये तो चर्चा हुई कि वो इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट कर रहा है या बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहा है। आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग ये बात करेंगे। एक, अगर आपको सेक्शन याद हो 94(7), तो डिविडेंड स्ट्रिपिंग का सेक्शन होता था, आज भी है। तो मैंने देखा ये वो खत्म क्यों नहीं किया। डिविडेंड स्ट्रिपिंग क्या होता था, किसी कंपनी ने या किसी म्यूचुअल फंड ने डिविडेंड दे दिया, आपने जस्ट पहले उसको परचेज कर लिया और बिफोर 3 इयर्स उसको बेच दिया शेयर्स को, तो आपके हाथ में जो डिविडेंड आया उसके बाद जो आपने बेचा वो जनरली कैपिटल लॉस हो गया आपका। बिकॉज सपोज करो कोई 100 रुपए का शेयर खरीदा, उसमें 10 रुपए का डिविडेंड आ गया, तो उसकी वैल्यू 90 रुपए रह गई, आपने उसको मान लो 92 में बेच दिया, अगेन लॉस हो गया आपको 100 रुपी माइनस 92, 8 रुपीज का। लेकिन इसके बीच में आप डिविडेंड ले गए, वो वहां एग्जेम्प्ट कर लेते थे आप और कैपिटल गेन को आप उसमें दिखा देते थे। तो इसलिए सेक्शन 94(7) लाए कि डिविडेंड क्योंकि आप एग्जेम्प्ट कर लेते हो तो वहां पर आपको कैपिटल लॉस हो जाता है, वो आप सेट ऑफ कर लेते हो दूसरी इनकम से। अब क्योंकि डिविडेंड ही एग्जेम्प्ट, डिविडेंड ही टैक्सेबल है, तो इस सेक्शन की रेलेवेंसी कम हो गई। लेकिन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है 94(7), क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी सिक्योरिटीज हैं जिसमें जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट है। जैसे अगर हम 10(19) में पढ़े, नोटिफाइड सिक्योरिटीज हैं जिसके इंटरेस्ट सारे इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है। तो अगेन वहां पर यही 94(7) डिविडेंड और इंटरेस्ट स्ट्रिपिंग वाला पोर्शन फिर से लगेगा। अगेन आदमी क्या करेगा, वो सिक्योरिटी खरीदेगा, 3 दिन बाद बेच देगा, बीच में इंटरेस्ट पोर्शन को ले लेगा और अपना कैपिटल लॉस बुक कर लेगा और कहीं से भी सेट ऑफ कर लेगा। तो इसको रोकने के लिए आज भी डिविडेंड स्ट्रिपिंग सेक्शन 94(7) अवेलेबल है। आगे बात करते हैं 94(8) की। ये कहता है बोनस स्ट्रिपिंग। बोनस स्ट्रिपिंग में मालूम नहीं क्यों शेयर्स को उन्होंने एग्जेम्प्ट रखा है, सिर्फ म्यूचुअल फंड यूनिट्स पे रखा है। सपोज करो कोई यूनिट आपको बोनस इशू करती है, अगेन वही प्रॉब्लम कि आपने 100 यूनिट्स खरीदे, आपको 100 बाई वर्च्यू ऑफ बोनस मिल गए, दूसरे दिन या 10 दिन बाद विदिन 3 मंथ्स आपने सेल आउट कर दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बुक कर लिया। तो वो कहते हैं ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने बीच में बोनस खा लिया और बोनस को बाद में जाके बेच दिया और उसको एग्जम्पशन ले लिया, वो जो एग्जम्पशन है 1 लाख रुपए की, वो आपने अवेल कर ली। तो उसकी कॉस्ट को जो रीशेड्यूल कर लेते हैं, जो उन्होंने परचेज किया प्लस जो सेल किया, उस बोनस को भी उसमें शामिल करके कॉस्ट को फैला लेते हैं। तो दोनों 200 यूनिट हो गए, तो वो जो कॉस्ट थी आपकी वो 200 यूनिट से डिटरमाइंड हो गई। इस तरह से बोनस स्ट्रिपिंग आपको करने का मौका नहीं। इसका मतलब अगर आपने लॉस बुक किया है ड्यू टू बोनस स्ट्रिपिंग, वो आपको करने को नहीं मिलेगा, वो आपका लॉस ट्रीट नहीं होगा, वो यही ट्रीट होगा टू द एक्सटेंट ऑफ बोनस, आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब अगर लॉस आपको एक्चुअल सेंस में नहीं हुआ है तो आपको लॉस नहीं मिलेगा, और फिर भी एक्चुअल सेंस में हुआ है, मतलब आपको बोनस के बाद भी शेयर आपका कम में बिका है, तो आपको लॉस होगा। प्रॉफिट के केस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है ही, वो तो गवर्नमेंट तो देखिए, गवर्नमेंट तो बहुत चालाक है, उसे तो टैक्स लेना है। अगर डिपार्टमेंट को टैक्स मिलने की दे रही है तो वो लेगी। मैं आपको छोटे से एग्जांपल देता हूं, बड़ा आसान है याद करना भी। कई बार एक कंफ्यूजन होता है, अतुल जी, एक कंफ्यूजन बड़ा रहता है कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म सेट ऑफ होगा नहीं होगा, लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म होगा नहीं होगा, वगैरह वगैरह। इसकी मैंने बड़ी आसान सी तरकीब बना ली है। मैंने गवर्नमेंट को ये समझ लिया है ये पक्की बिजनेसमैन है और हर चीज बिजनेस की तरह देखती है, एक एक रुपया इसका बिजनेस की तरह होता है। जैसे एक व्यापारी सोचता है ना, बिल्कुल ये वैसे ही सोचती है।
मैं इस बात को ऐसे प्रूव करूं कि वो कहती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपने 15% टैक्स देना है, ठीक है सर, इक्विटी में आपको 15% टैक्स देना है, लॉन्ग टर्म में आपको 10% देना है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म लॉस हो गया तो वो कहती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इसे सेट ऑफ कर लो। हम एक बाजार गए, एक चीज लेने गए, हमारे घर में 100 रुपए की चीज आ गई और वो बेकार निकली, हम व्यापारी को वापस करने जा रहे हैं, तो व्यापारी यही तो कहेगा इससे कम की चीज ले जाओ, ऊपर की नहीं दूंगा। तो बिजनेसमैन है सरकार हमारी, तो वो कहती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को तो लॉन्ग टर्म गेन से एडजस्ट कर लो, लेकिन लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म से नहीं एडजस्ट कर सकते। क्यों? वहां पर उसे 10% टैक्स मिल रहा है, यहां पर 15% टैक्स मिल रहा है। एक और बात, सेट ऑफ की बात चली है, तो सेट ऑफ किस तरह से होते हैं? आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो पहले होता था वो डेड लॉस होता था, अगर लॉस होता था तो। आज की डेट में क्योंकि उस प्रॉफिट पे टैक्स लगता है तो आपको कैरी फॉरवर्ड मिल जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो पहली बात तो सेट ऑफ सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा, क्योंकि वो 10% है, वो दूसरे हेड से करने नहीं देगा। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो आपका उससे एडजस्ट हो सकता है। एक और चीज, कैरी फॉरवर्ड के नियम है 8 साल आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि आपको मान लो लॉस उस वजह से आया है कि आपका जो 31 जनवरी 2018 का रेट है, जिसे ग्रैंडफादर वैल्यू कहते हैं, अगर उस वजह से लॉस आया है तो आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मीनिंग देयर बाय आपका जो परचेज कॉस्ट है और सेल कॉस्ट है उसका डिफरेंस अगर लॉस है, उसका डिफरेंस 2 वजह से लॉस में आ सकता है। एक तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस में आ सकता है कि आपने ग्रैंडफादर अप्रोच ले ली, 31 जनवरी आपने रेट अडॉप्ट कर लिया और आज का रेट, मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमने 100 रुपए का शेयर खरीदा था 31 जनवरी 2018 से पहले, आज 200 रुपए का बेच दिया, मुझे 100 रुपए का गेन हो गया। बट ग्रैंडफादर वाले दिन यानी कि 31 जनवरी के दिन उसका रेट 190 था, तो मेरा गेन जो हुआ एक्चुअली इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 रुपए रह गया। अब यूं समझिए मैंने उसे 180 रुपए में बेच दिया तो मेरा लॉस हो गया एज फार एज इनकम टैक्स इज कंसर्न, क्योंकि 190 रुपए तो ग्रैंडफादर वैल्यू थी, मैंने 180 रुपए में बेच दिया, तो एज फार एज इनकम टैक्स इज कंसर्न मेरा लॉस कितना हो गया? 10 रुपए का। लेकिन ये 10 रुपए मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, वो इस वजह से क्योंकि मेरी परचेज कॉस्ट तो 100 रुपए है और मेरी सेल कॉस्ट है 180 रुपए, तो जो मुझे एक्चुअली तो प्रॉफिट हुआ है, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ ग्रैंडफादर वैल्यू मुझे लॉस हुआ है, तो मैं इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल से क्लियर है कि हमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किस तरह का कैरी फॉरवर्ड करना है। कुछ चीजें और बता दूं, अगर हमारा स्टॉक इन ट्रेड की तरह है शेयर्स, तो हमें सारे एक्सपेंडिचर जो भी अलाउबल एक्सपेंडिचर है वो मिलेंगे, चाहे हम बंदा रख लें, सैलरी वाला रख लें, हमें इवन डिविडेंड्स मिल रहे हैं, वो भी हमारे बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट होंगे। भले ही सेक्शन 94 में जो टीडीएस कटता है वो कहता है कि ये अदर इनकम है, लेकिन अगर हमने स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखा हुआ है अपने स्टॉक्स को, तो ये जितनी भी इनकम्स हो रही हैं, इवन डिविडेंड्स इनकम, तो वो हमारी बिजनेस इनकम में जाएंगी। एक चीज हम अक्सर गलती करते हैं, वो हमें नहीं करनी है। अब क्या होगा कि जब इन पे टीडीएस कटेगा डिविडेंड इनकम पर, तो वो सेक्शन 94 और 94K में कटेगा, 194K में, तो वो जब आएगा वो अदर इनकम में डालेंगे जब हम रिटर्न भरेंगे, क्योंकि अब हम दिखाना चाह रहे हैं अगर हम बिजनेस कर रहे हैं शेयर्स का, तो हम कहां दिखाना चाहेंगे? बिजनेस इनकम में। तो जैसे हम बिजनेस इनकम में जाएंगे तो एक क्वेरी रेज हो जाएगी इनकम टैक्स की कि आपने अदर इनकम में तो कुछ दिखाया ही नहीं, क्योंकि डिविडेंड जब आपके 26 AS में डाउनलोड होंगे तो डिविडेंड्स इनकम कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होंगे, तो लेकिन आप उसे बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि आपने स्टॉक इन ट्रेड में दिखा रखा है। तो वहां एक छोटी सी सलाह है मेरी, जब उस कॉलम को भरिए, फॉर्म 3 को भरिए, जब बिजनेस के कॉलम को हम फॉर्म 3 ITR 3 भरते हैं, तो वहां पर डिविडेंड का कॉलम है बिजनेस में भी। जब हम पूरी बैलेंस शीट भरते हैं तो डिविडेंड को उस हेड के अंदर डाल दीजिए, तो कहीं कोई क्वेरी नहीं आएगी, अदरवाइज 143(1) के नोटिस आएंगे ही आएंगे, और वो उस इनकम को स्किप्ड इनकम मान के और कंसील्ड इनकम मान के
वो अगेन टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम ये आपने डिविडेंड किस रूप में दिखाया है। आप तो बिजनेस में दिखा गए, बट आपका दिखाया हुआ माना नहीं जाएगा, क्योंकि आपने डिविडेंड में दिखाया नहीं, कुछ अदर इनकम में उसको शो नहीं किया। तो 26AS में आप देख लीजिए, इसकी एक और अप्रोच है। सपोज करो 26AS में डिविडेंड पे TDS कटा हुआ है और डिविडेंड इनकम मान लो आपकी 1 लाख रुपए है, और वो उन्होंने बाय वर्च्यू ऑफ 26AS वो अदर इनकम में आ रही होगी, बाय डिफॉल्ट अदर इनकम में आ रही होगी, उसे आप वहीं पर ही ड्रॉप डाउन अप्रोच करके बिजनेस इनकम कर लीजिए। तो आप दो काम कर सकते हैं। नंबर 1 कि आप जब बिजनेस का वो भरें, रिटर्न भरें, यानी कि ITR 3 भरें, तो वहां पर डिविडेंड इनकम को बिजनेस इनकम दिखाते हुए डिविडेंड वाले कॉलम में डाल दें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ये नहीं कर सकते तो 26AS में जो डाउनलोड होता है वहां पर ड्रॉप डाउन अप्रोच होती है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, वहां पर उसको बिजनेस इनकम में डाल दीजिए। मतलब आपने बिजनेस की तरह दिखाया है, तो वहां पर अगेन 143 की क्वेरी नहीं आएगी। तो ये आपने करना है। डिविडेंड और बोनस स्ट्रिपिंग हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा, कितने टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अब दोनों ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सिक्योरिटी का, वो सभी हेड से सेट ऑफ हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी इनकम। सैलरी इनकम से कुछ भी सेट ऑफ नहीं होता, बाकी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेट ऑफ सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होगा। एक बात और समझने की है, सपोज करो हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया बिजनेस प्रॉपर्टी से भी, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया शेयर से या म्यूचुअल फंड से, तो वो इंटर सेट ऑफ नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पर अगेन बिजनेसमैन पॉलिसी या गवर्नमेंट कहती है कि वहां पर तो आपको 20% टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपको मालूम है डेट में या अदरवाइज आपको 20% टैक्स देना पड़ता है जब आप इंडेक्सिंग करते हैं। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर जो 112A वाला होता है, यानी कि शेयर्स म्यूचुअल फंड्स का होता है, वहां 10% लगता है, तो वो भी आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन दोनों ही लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं अप टू 8 ईयर्स। वो हमें मालूम है, हमें रिटर्न टाइम से भरनी है वगैरह वगैरह वगैरह। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आते हैं। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हम लोगों को बहुत कुछ मालूम है इसके बारे में। 15%, 10%, 1 लाख की एग्जेम्पशन, जल्दी रिपीट कर देता हूँ। 1 लाख की एग्जेम्पशन, ग्रैंडफादर वैल्यू के बाद का टैक्स वगैरह वगैरह। लेकिन होता क्या है कि एसएससी सिर्फ इतना काम करे तो समझ में आता है कि हम लोग आराम से रिटर्न भर देंगे। एसएससी इससे बियॉन्ड चला जाता है, क्योंकि जब वो ट्रांजैक्शन करता है तो वो ये तो देखता नहीं कि मेरी होल्डिंग क्या है, मेरा क्या है। उसे तो बस पैसा कमाना है, उसे हर हालत में पैसा कमाना है, क्योंकि दूसरे लोग ऑप्शन दे देते हैं कि भैया F&O भी कर लो, फ्यूचर भी कर लो, ऑप्शन भी कर लो और इंट्राडे भी कर लो। तो ये सारे जो समस्याएं हम लोगों को आती है ना, जो अतुल जी बता रहे थे कि इतना बंच लेके आ जाता है एसएससी, तो वो बड़ी समस्या का काम है। तो एक चीज मैं स्पष्ट रूप से बताऊं कि स्पेकुलेशन जो इनकम है वो इनकम टैक्स ने कहीं भी प्रेस्क्राइब नहीं कर रखी कि ये स्पेकुलेशन इनकम है। हाँ, स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन जरूर बता रखे, दीज आर द स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन 43(5) में सेक्शन में लिखे हुए हैं। मींस इंट्राडे जो ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं वो सब स्पेकुलेशन है, जहां कोई डिलीवरी से कोई मतलब नहीं, डिलीवरी लेनी नहीं है, डिलीवरी देनी नहीं है, जो सौदे स्क्वायर्ड अप उसी सेम डे के हो गए, वो सब स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन की श्रेणी में आती है सेक्शन 43(5) में। लेकिन इसको एग्जेम्पशन में रखा है उन्होंने 4 या 5 ट्रांजैक्शन को, जो भी हैजिंग टाइप के ट्रांजैक्शंस हैं, जब हम हैज कर लेते हैं सिचुएशन को, उन ट्रांजैक्शन को अलग कर दिया है। और कैटेगरिकली जो F&O ट्रांजैक्शन है, ऑप्शन के ट्रांजैक्शन है, डेरिवेटिव्स हैं, उनको स्पेकुलेशन से अलग कर लिया, और ये प्योर बिजनेस ट्रांजैक्शन माने जाते हैं, प्योर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। लास्ट ईयर मैं देख रहा था कि करीब 40 से 50 हजार चार्टर अकाउंटेंट्स ने अपनी, हमारी जो सेंट्रल काउंसिल बॉडी है, उसको लिखा था, सर हम ये ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट है कि फ्यूचर ऑप्शन, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन है, स्पेकुलेशन बिजनेस ट्रांजैक्शन है,
तो एक चार्टर अकाउंटेंट कैन नॉट डू बिजनेस। तो हम लोग ये ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते थे। अभी थोड़े टाइम पहले रिसेंटली सेंट्रल बॉडी ने, हमारी सेंट्रल काउंसिल मेंबर जो है, उन्होंने बोला आप एप्लीकेशन दीजिए, हम आपको F&O ट्रांजेक्शन की परमिशन देते हैं। तो अब एक चार्टर अकाउंटेंट F&O ट्रांजेक्शन कर सकता है, लेकिन एक शर्त है, वो रेस्ट्रिक्टेड टू शेयर्स ओनली। वो डेरिवेटिव्स में नहीं कर सकता, वो कमोडिटी में नहीं कर सकता। तो वो शेयर्स में F&O ट्रांजेक्शन कर सकता है इंस्टीट्यूट की परमिशन लेके। तो ये हम लोगों को एक एडवांटेज मिल गया, क्योंकि हम लोग सारे ऑलमोस्ट करते ही हैं जैसे और लोग करते हैं। तो स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन बता रहा था। स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन में जो 2-3 एग्जेम्पशंस हैं, जैसे F&O ट्रांजेक्शन, वो स्पेकुलेशन श्रेणी में नहीं आता, लेकिन वो बिजनेस की श्रेणी में आ जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? F&O ट्रांजेक्शन का बिजनेस में ट्रीटमेंट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ और बिजनेस इनकम हो गई। लेकिन बिजनेस इनकम हो गई तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड जो लॉसेस हैं, वो बिल्कुल उसी तरह से मिलेंगे जैसे नॉर्मल बिजनेस की तरह। स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन में ऐसा नहीं है। स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन में क्या है कि उसके जो सेट ऑफ हैं वो सिर्फ स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन तक सीमित रहेंगे। उसका कैरी फॉरवर्ड भी जो होगा वो आगे फ्यूचर में जो भी स्पेकुलेशन प्रॉफिट होगा वहां से सेट ऑफ होंगे। वो दूसरे बिजनेस से नहीं हो सकते और इंट्रा हेड से नहीं हो सकते, ऊपर नीचे कुछ नहीं हो सकते। F&O के ट्रांजेक्शन सभी हेड से सेट ऑफ हो सकते हैं। अगर उसका लॉस है तो एक फायदा है, क्योंकि मैंने तो बहुत टाइम से देखा ही नहीं कोई लोग F&O से भी इनकम कर रहे हो। मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं, पता नहीं वो क्यों करते हैं, आई डोंट नो, बट वो एट द एंड ऑफ द डे वो लॉस ही दिखता है मुझे। भले शेयर मार्केट कहीं भी जा रही हो, बट जनरली आप पाएंगे कि वो लॉस लेके आएगा। अब यहाँ पर चार्टर अकाउंटेंट की बहुत बड़ी ड्यूटी है। यहाँ पर एक चीज समझिए कि हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं F&O ट्रांजेक्शन से और स्पेकुलेशन से, इंट्राडे से। यहाँ पर कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इसकी ऑडिट सीलिंग क्या है। मैं चर्चा करूंगा कि ऑडिट क्या है, मैं चर्चा करूंगा कि 44 AD में आ सकते हैं नहीं आ सकते, क्या ऑडिट होना भी है कि नहीं होना, और टर्नओवर को कैसे डिटरमाइन करेंगे। मुझे नहीं लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसकी टर्नओवर को डिफाइन करने की कोई भी डेफिनेशन आज तक दे पाया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की F&O ट्रांजैक्शन की जो टर्नओवर डिटरमाइन होगी वो कैसे होगी। सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस जो नोट्स हैं जो 3CD में उन्होंने दिए हैं टैक्स ऑडिट में, उसमें उन्होंने जरूर लिखा है, उसमें लिखा है कि जो टोटल ट्रांजैक्शन है उसको नहीं माना जाएगा। जब स्क्वायर्ड अप होता है ट्रांजैक्शन, जब वो ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट और लॉस में कन्वर्ट होता है जिस दिन, तो या तो वो प्रॉफिट होएगा या लॉस होगा, दो ही चीजें होंगी। तो सम टोटल ऑफ प्रॉफिट एंड सम टोटल ऑफ लॉसेस, वो दोनों एग्रीगेट ऑफ सम टोटल ऑफ प्रॉफिट सम टोटल ऑफ लॉसेस, वो आपकी टर्नओवर ट्रीट होगी एज फार एज F&O ट्रांजैक्शन। ऑप्शन में जो प्रीमियम आपको पे करनी पड़ती है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, फ्यूचर सौदे के लिए, जब ऑप्शन में आप प्रीमियम देते हैं या प्रीमियम वसूल करते हैं, जब रिवर्स ट्रांजैक्शन में आपको देनी पड़ती है, अदरवाइज आपको मिलती है, तो वो जो आपको देनी पड़ी या मिली वो भी इस ट्रांजैक्शन में जुड़ जाती है। मतलब टर्नओवर की डेफिनेशन वाइड हो गई। आपके टोटल ऑफ लॉसेस पर ट्रेड, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स पर ट्रेड, उनका सम प्लस प्रीमियम पेड बाय यू या प्रीमियम रिसीव्ड बाय यू, तो ये चारों चीजें का टोटल आपका क्या बनेगा, आपका टर्नओवर बन जाएगी। अब ये यूजुअली टर्नओवर इतनी बड़ी हो जाती है कि अब ऑडिट की क्वेश्चन आता है। जब मैंने कह दिया कि ये इन्वेस्टमेंट बाइंग नहीं है, ये कैपिटल गेन नहीं है, ये फिर एक ही हेड रह जाता है कि बिजनेस इनकम की तरह हेड रह जाता है। तो बिजनेस इनकम जब बात आती है तो चार्टर अकाउंटेंट के चेहरे तो खिल जाते हैं कि सेक्शन 44 AB में आएगा, ये टैक्स ऑडिट कराएगा, क्योंकि वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि अगर इनको हम टोटल करें तो ऑडिट का केस बनता है। यहां पर मेंबर्स की एक जानकारी में लाऊंगा कि सपोज करो उसकी टर्नओवर से 60 लाख रह गई और वो 4 लाख रुपए प्रॉफिट दिखाना चाहता है, क्या सेक्शन 44 AD लगेगा? एक बार सेक्शन 44 AD को रीड करो तो सेक्शन 44 AB के ई क्लॉज में हम डालते हैं तो वो कहता है अगर आपने इनकम 6% या 8% वट एवर द केस में भी,
अगर डिजिटाइज मोड में है तो 6%, अदरवाइज 8%। तो F&O ट्रांजेक्शन यूजुअली डिजिटाइज मोड में होते हैं तो 6% वाली थ्योरी लगेगी। क्या यहाँ पर सेक्शन 44 AD लगेगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या वो उसकी ऑडिट होएगी? अगर 1 करोड़ से ऊपर होगा तो क्या होगा, और 2 करोड़ से ऊपर होगा क्या होगा, 2 करोड़ से अंदर होगा तो क्या होगा? तीनों चीजें सिचुएशन को आज क्लियर करते हैं। ये पहली सिचुएशन, F&O टर्नओवर सिर्फ 40 मिनट हो गए मुझे लगता है मुझे। मैं सुनाई दे रहा हूं आपको? यस सर, चलिए, यस सर, सुनाई दे रहा है। वो मेरे ख्याल से 40 मिनट के चक्कर में वो चला गया होगा। ठीक है अतुल जी, नहीं मैं सर, आपका आ रहा है वॉइस सर। ठीक है, मैं बात कर रहा था जो F&O की ट्रांजैक्शन, मैंने टर्नओवर समझा दी कि टर्नओवर F&O की क्या होती है। अब बात आ रही है कि वो ऑडिट किस तरह से होगा, सेक्शन 44 AD में जाएगा, 44 AB में जाएगा, क्या होगा? तो मैं ये बता रहा हूं कि जनरली जो स्टॉक एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डिजिटाइज मोड में होते हैं। सारे के सारे आपको चेक से पेमेंट करनी होती है और चेक से ही मिलती है। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि 6% की कैटेगरी में आप आएंगे। अब 44 AD में ऑडिट होगा या नहीं होगा, इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट हैं। मैं किसी डिस्प्यूट में नहीं जा रहा, क्योंकि सेक्शन 44 AD एक बात कहता है कि 3 तरह के बिजनेस सेक्शन 44 AD के परव्यू से बाहर है। नंबर 1, वो 44 AE और 44 ADA वाले छोड़ दो, नंबर 1। नंबर 2, वो बिजनेस जो एजेंसी बिजनेस है वो से भी छोड़ दो, या तीसरा बिजनेस कमीशन वाले हैं वो भी छोड़ दो। तो ये तीनों तरह के बिजनेस तो है नहीं, इसका मतलब ये सेक्शन 44 AD के परव्यू में आ जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं कि 44 AD के परव्यू में आ गया और इसकी 80 लाख की टर्नओवर है और 6% से कम प्रॉफिट है, तो हम लोग ऑडिट करेंगे क्या? मेरा आंसर तो यस है कि 44 AD में आ गया है तो ऑडिट करेंगे। लेकिन यहां पर 44 AD की रिक्वायरमेंट है अगर उसकी टोटल इनकम मैक्सिमम लिमिट से कम है, यानी 2.5 लाख रुपए से कम है, तो अगेन ऑडिट नहीं होगा एज फार एज जब तक वो उसका 1 करोड़ से नीचे टर्नओवर है। अब बात करते हैं उसका टर्नओवर 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में, इसका मतलब वो फॉल कर गया ऑडिट के लिए। एक बात, वो 6% से ऊपर दिखा दे, ऑडिट परव्यू से बाहर हो गया बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 44 AD, क्योंकि उसने 7% का प्रॉफिट चूज कर लिया तो वो ऑडिट परव्यू से बाहर हो गया जब तक वो 2 करोड़ रुपए की टर्नओवर कर रहा है। अब उससे 2 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है लेकिन उसका 6% से कम है, उसका हम बिल्कुल सेक्शन 44 AB में जैसे ऑडिट करते हैं वैसे करते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होंगी उसकी। तो इनकम टैक्स के एक प्रोविजन पर बड़ा ध्यान से चलते हैं, सेक्शन 44 AA। उस पर स्ट्रेस मैं इसलिए देता हूं उस सेक्शन पे क्योंकि वो सेक्शन प्रोफेशनल्स को छोड़ के कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बताता ही नहीं कि कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रेस्क्राइब नहीं है अगर हम सेक्शन 44 AA में देखें। सिर्फ प्रोफेशनल को छोड़ दीजिए, अब डॉक्टर्स को छोड़ दीजिए जहां पेशेंट रजिस्टर है वगैरह वगैरह, कोई कैश बुक, कोई लेजर, कोई स्टॉक रजिस्टर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है। वहां पर एक बात करता है, वो असेसिंग ऑफिसर आपकी करेक्ट इनकम को निकाल पाए, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। आप कोई भी सेट ऑफ चीजें, बुक्स, कोई भी चीजें, कोई भी रजिस्टर ले जाइए जहां से आपकी करेक्ट इनकम पता चल जाए तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। मैं बात अगेन F&O की कर रहा हूं। अमित जी मुझे एक बात बताइए, F&O बिजनेस में क्या प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन नहीं है? ब्रोकर एक स्टेटमेंट देता है कि ये वाले आपने ट्रांजैक्शन किए, ये आपको प्रॉफिट हुआ, इस ट्रांजैक्शन में आपको इतना लॉस हुआ और ये फाइनल आपका लॉस या प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट लॉस डिटरमाइंड है तो वो सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया। दूसरा, अगर आपने उसके रिलेशन में कोई एक्सपेंडिचर किया है,
सपोज करो बिल्कुल डायरेक्ट नेक्सस है, उसमें एक आपने आदमी रखा हुआ है, वो काम करता है, और आपने एक रजिस्टर मेंटेन कर लिया कि ये मैं पेमेंट करता हूँ, चेक से पेमेंट करता हूँ, इस आदमी को देता हूँ, ये मेरे F&O काम के लिए है, मैंने ये बोरिंग कर रखी है और बोरिंग भी इसी काम में मैंने लगा रखी है, तो उसका इंटरेस्ट, और ये गाड़ी मेरे पास है जो इसी काम के लिए है, इसका डेप्रीशिएशन। तो अगर ये 2-3 एक्सपेंडिचर उसने और ले लिए तो वो भी उसके काउंट होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट। अब अतुल जी, मेरी एक समस्या है बहुत विकट, उस पर जरा आप भी गौर कर लीजिएगा। समस्या इतनी बड़ी है कि वो सारे CS की समस्या बन जाएगी। अगर अब मैं यहां पर ये कहने लग जाऊं कि उसकी टर्नओवर करते करते F&O की 3 करोड़ हो गई, तब अतुल जी आप ऑडिट करेंगे क्या? या अमित जी आप ऑडिट करेंगे उसका? 3 करोड़ की टर्नओवर हो गई, क्या होगा? ऑडिट होगा? होगा नहीं होगा? अतुल जी होगा? सर होगा ऑडिट ऑडिट। तो होगा सर। चलिए आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि नहीं होगा, मैं इसको बात को प्रूव भी कर देता हूं, क्योंकि हमारा ऑडिट का मसला है सेक्शन 44AB है, तो मेंबर्स को पता होना चाहिए कि सेक्शन 44AB किसे कहते हैं। तो सेक्शन 44AB आज से 3 साल पहले देखो तो बात करता था लिमिट 1 करोड़ की, आज लिमिट सर 10 करोड़ की हो गई है या 5 करोड़ की हो गई है। लास्ट ईयर तक 5 करोड़ की लिमिट हो गई है और 10 करोड़ की हो गई है इस साल के लिए। अब एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, ये 5 करोड़ और 10 करोड़ क्या है? अगर कोई एसएससी हमारा 1 करोड़ से ऊपर जाता है और वो 4 करोड़ की टर्नओवर कर देता है और सारा अपना ट्रांजैक्शन डिजिटाइज मोड में करता है टू द एक्सटेंट ऑफ 95%, सिर्फ 5% के उसमें वो अपने वो वाले ट्रांजैक्शन करता है, बाकी सारे ट्रांजैक्शन वो डिजिटाइज मोड में कर रहा है, पेमेंट भी और रिसीट भी। तो सेक्शन 44AB का एक प्रोविजो कहता है कि अगर आप ट्रांजैक्शन 95% के एक्सटेंट तक डिजिटाइज मोड में कर रहे हैं, as far as payment is concerned, as far as receipts are concerned, then again you are not in the purview of tax audit up to ₹10 करोड़। इस साल 10 करोड़ है, लास्ट ईयर 5 करोड़ है। अब एक F&O बिजनेस वाला हमारे पास आता है सर, 2 करोड़ 5 लाख रुपए की सेल करता है। 2 करोड़ तक तो आप 44AD में घेर लेंगे उसे, 6% वाली बात में, 6% वाले में लेंगे, 6% से कम दिखाता है तो उसे पकड़ लेंगे, यहां पर ऑडिट करा। 2 करोड़ 10 लाख रुपए की वो टर्नओवर करता है, तब आप किस सेक्शन में ऑडिट करेंगे? उसकी सारी पेमेंट डिजिटाइज मोड में है, उसकी सारी रिसीप्ट डिजिटाइज मोड में है, यानी वो कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, 4-5% करता होगा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के रूप में, क्योंकि यहां पर जो उसके एक्सपेंडिचर हैं, जो उसके पेमेंट सिस्टम है, वो भी डिजिटाइज मोड में होना चाहिए, क्योंकि यहां पर टर्नओवर की बात नहीं करता है वो। टोटल ऑफ रिसीट, टोटल ऑफ पेमेंट 95% के एक्सटेंट तक उसके डिजिटाइज मोड में होना चाहिए, है कि नहीं सेक्शन 44AB में? अतुल जी बता दो, है ऐसा ही है। अब उसकी 2 करोड़ को एक्सीड कर गई और 10 करोड़ से कम है, अब उसकी रिटर्न कौन सी भरोगे? क्या सेक्शन 44AD में ऑडिट करोगे, सेक्शन 44AB में ऑडिट करोगे, किस सेक्शन में हम लोग ऑडिट करेंगे? मेरे ख्याल से सेक्शन 44AD खत्म हो जाता है 2 करोड़ तक, खत्म हो जाता है ना सर? अमित भाई हाँ कर रहे हो, खत्म हो गया 2 करोड़ पे सेक्शन 44AD खत्म हो गया। यस सर। 1 करोड़ से ऊपर और 2 करोड़ के बीच में सेक्शन 44AD रहता है, अगर वो 6% आप ले रहे हो, वो भी एग्जॉस्ट हो जाता है कि अगर आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है, अगर 1 करोड़ से नीचे है और आप टैक्स ऑडिट में नहीं आएंगे, अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो भी आप परव्यू में नहीं आते। 1 करोड़ से 2 करोड़ के ऊपर में आप 100% ऑडिट करते हो, क्योंकि उसके बिना ऑडिट के बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो सेक्शन ही अपने आप में है कि 1 करोड़ से ऊपर आप ऑडिट करोगे, और अगर 2 करोड़ से नीचे है तो 6% से नीचे दिखा रहा है तो आपको ऑडिट करना पड़ेगा। व्हाट अबाउट 2 करोड़ से लेके और 10 करोड़? 2 करोड़ से लेके 10 करोड़ में कोई भी बिजनेस हाउस अगर सारे अपने डिजिटाइज मोड में कर रहा है, क्या अभी भी ऑडिट करोगे? 44AB का सेक्शन नहीं कहता है कि आप 2 करोड़ से ऊपर 44AD को अप्लाई कर पाए, या 44AB तो अपने आप में एक लिमिट है 10 करोड़ की, 10 करोड़ तक आप उसका ऑडिट नहीं करेंगे। एक भले ही विडंबना है, अमित जी सिर हिला रहे होंगे, अतुल जी भी सिर हिला रहे होंगे, लेकिन एक नई चीज आपको दे रहा हूं
कि 2 करोड़ तक का ऑडिट, 5 करोड़ पे ऑडिट नहीं, मतलब 2 करोड़ में वो 100% अगर डिजिटाइज मोड में कर रहा है, 100% डिजिटाइज, तो भी उसका ऑडिट होगा, क्योंकि वहां सेक्शन 44AD अटका हुआ है। 44AD कह रहा है कि अगर आपके 6% से नीचे अगर आप दिखाओगे तो ऑडिटर के पास जाना पड़ेगा, अतुल जी से ऑडिट कराना पड़ेगा, चाहे अतुल जी कैसे भी करें, इतने सारे पेपर लाएगा वो। लेकिन बहुत आसान है उस पेपरों को छांटना, उसी से एक्सरसाइज करा लीजिए कि पर ट्रेड निकाल ले डेबिट, पर ट्रेड निकाल लीजिए क्रेडिट, और नीचे उसकी प्रीमियम वगैरह जोड़ दीजिए, टर्नओवर आ गई। उसमें ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। इवन स्पेकुलेशन के केस में जब वो इंट्राडे करता है तो इंट्राडे के भी ट्रांजैक्शन अलग से शो होते हैं। सर एक और बात बताऊं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप जितने भी तरह के ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं सबकी अलग अलग पता चलती है, क्योंकि एसटीटी का कोड अलग है। जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वो पे करके आ रहा है, अगर वो इंट्राडे का कर रहा है या एफएनडो का कर रहा है, तो उसके जो एसटीटी कोड है वो आईटीओ को मालूम है कि इसने इंट्राडे कितना किया है, इसने नॉर्मल कितना किया है डिलीवरी बेस्ड, और इसने एफएनडो कितना किया है। अब वो स्किप रूट नहीं निकाल सकता। समटाइम्स सेक्शन 44AD में भी वो स्किप रूट नहीं निकाल सकता 6% उसका सहारा लेके। लेकिन यहाँ स्किप रूट कैसे निकलेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होंगी, मैं तो बहुत ज्यादा सिरदर्दी पालता नहीं, क्योंकि उसके पास इतना सारा बल्क होता है, आपने बता ही दिया, वो इतने सारे लेके आता है कि हमें सिरदर्द पहले से हो जाता है। एक चार्टर अकाउंटेंट को वो जब एंटर करता है ना शेयर के ट्रांजेक्शन लेके और इतने सारे वो पढ़ के लेके, कहता सर ये सब है, मुझे कुछ नहीं मालूम। वाकई उसे कुछ नहीं मालूम होता है, और एट द एंड ऑफ डे वो भी सिर पीट रहा होता है, हम भी पीट रहे होते हैं, क्योंकि वो लॉस करके चुका होता है और हमें फीस देना नहीं चाहता, नहीं देना चाहता। वो एफएनडो करेगा लेकिन लॉस करेगा। उसे ये समझाइए कि जो तेरा एफएनडो लॉस है ये बिजनेस लॉस है, और ये तेरा अगले 8 सालों तक सेट ऑफ होता रहेगा। कभी 8 साल में इनकम तो तेरी होगी। सारे बिजनेस हेड से जितने भी तू बिजनेस करेगा सभी हेड से वो सेट ऑफ होगा, बशर्ते एक चार्टर अकाउंटेंट ऑडिट कर दे। तेरा लॉस भी तेरी इनकम है, मतलब उसको ये बताइए कि तेरा लॉस भी तेरी इनकम है, आगे के लिए तू टैक्स बचा लेगा, अगले 8 साल तक तो फ्री हो गया। तो बड़ा आराम से आप ऑडिट करके उसके लिए एग्जिट रूट निकाल सकते हैं। रही बात ऑडिट की, मेरे हिसाब से तो सबसे सिंपलेस्ट रूट है ये जो एफएनडो ट्रांजैक्शन है ना, 3 मिनट में तो टर्नओवर निकल आएगी। उसे समझा दीजिए, अपने आदमी को बिठा दे, तो पर ट्रेड डेबिट निकालना, पर ट्रेड क्रेडिट निकालना, नीचे प्रीमियम जोड़ दे और रिवर्स चार्ज अगर कोई दिया तो वो जोड़ दे, सर टर्नओवर हो गई फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 44AB। ये सर एक्सक्यूज मी सर, ये एफएनडो का ट्रांजैक्शन, एफएनडो का टर्नओवर हुआ ना सर? हाँ, अभी मैं एफएनडो पे ही अटका हुआ हूँ। ठीक है हाँ, सर, नहीं ठीक है सर। मैं एफएनडो पे इसलिए अटका हुआ हूँ क्योंकि यहाँ सेक्शन 44AD और AB और उसके बड़े भारी कंफ्यूजन है। हाँ जी, जो ये सेक्शन लेके आया 44AB में अमेंडमेंट के रूप में, जो 5 करोड़ और 10 करोड़ की लिमिट देख रहे हैं, गवर्नमेंट की इंटेंशन ये है कि हर आदमी डिजिटाइज फॉर्म में वो करे, अपने ट्रांजेक्शन को डिजिटाइज करे, ज्यादा से ज्यादा वो कोशिश करे 95% के एक्सटेंट में कि वो डिजिटाइज मोड करे, तो वो ऑडिट के परव्यू से बचा रहेगा 10 करोड़ तक। तो इवन एफएनडो ट्रांजैक्शन भी अगर वो 2 करोड़ से ऊपर करता है, मुझे नहीं मालूम गवर्नमेंट की यहाँ इंटेंशन क्या है कि उस 2 करोड़ को क्यों रखा हुआ है। 2 करोड़ 1 रुपए पे वो ऑडिट नहीं है, और 2 करोड़ से 1 रुपए कम में वो ऑडिट है। तो ये कौन सा तरीका हुआ, ये सर खोज के मुझे बताना। अमित जी, ये थोड़ा सा इस पे एक्सरसाइज करना, मेरी एक्सरसाइज तो पूरी हुई नहीं। तो मुझे तो एक ओपिनियन और लगती है, अगर मैं ऑडिट निष्कर्ष पे पहुंचूं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसने हर चीज डिजिटाइज कर रखी है और उसका प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइंड है किसी भी लेवल पे, तो सेक्शन 44AD भी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जब लॉ की इंटेंशन पढ़ता हूँ, 44AD पढ़ता हूँ, तो उसमें ये जरूर लिखा हुआ है, क्योंकि ये वाली इनकम उन्होंने, ये वाला जो प्रोफेशन है, ये वाली जो इनकम है या ये वाला जो बिजनेस है एफएनडो का, इसको एक्सक्लूड नहीं किया हुआ। तो जब एक्सक्लूड नहीं किया हुआ तो डेफिनेटली हमारा ये वाली टर्नओवर मानी जाएगी और सेक्शन 44AB में हम लोगों को आना ही पड़ेगा। क्यों जी, सहमत है सर अतुल जी? तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमें उसका ऑडिट करना है। इसका मतलब 2 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर हमें ऑडिट के परव्यू में नहीं रखनी, और उस बेचारे को जो लॉस करके आया हुआ है
उसको प्लेन ITR 3 भरनी है और उसका लॉस जो है वो उसी तरह से कैरी फॉरवर्ड होगा, चाहे वो CA ऑडिट करे या ना करे। 3 करोड़, 4 करोड़ और 5 करोड़ तक आप लास्ट ईयर तक उसको बिना ऑडिट के कर सकते हैं, और अगले साल तो 10 करोड़ की लिमिट हो गई, क्योंकि आपको जो अब मिलने वाला है काम वो F&O का बिजनेस बहुत मिलेगा। हर घर में हो रहा है, हर लड़का कर रहा है, हर बच्चा कर रहा है, हर बड़ा कर रहा है। बिजनेस तो उसके फ्लॉप हो चुके हुए हैं, तो वो यही काम करता है। तो एक बात क्लियर हो गई कि F&O का जो बिजनेस है, लॉस है, सेट ऑफ हो जाएगा हर एक हेड से, सैलरी को छोड़ के, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो अदर इनकम हो, उससे सारा सेट ऑफ होगा। सेट ऑफ करने का मैंने तरीका बता दिया, क्योंकि बिजनेस इनकम को मैक्सिमम रेट से टैक्स लगता है, उसको कोई स्पेसिफाइड रेट नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो बिजनेस लॉसेज हैं वो इवन शॉर्ट टर्म से, लॉन्ग टर्म से, अदर इनकम से सबसे सेट ऑफ हो जाते हैं उस पर्टिकुलर ईयर में। लेकिन जब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड वो उसी हेड से होगा। अब दूसरी बात करते हैं, इसको ट्विस्ट कर लेते हैं। क्या स्पेकुलेशन इनकम की भी इनकम, स्पेकुलेशन लॉस का भी आपस में सेट ऑफ हो जाएगा क्या? वो भी बिजनेस है और नॉर्मल बिजनेस भी बिजनेस है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो नॉर्मल बिजनेस है ये तो सबसे सेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन जो स्पेकुलेशन लॉसेज हैं वो किसी से भी सेट ऑफ नहीं होंगे, ऊपर नीचे भी किसी हेड से नहीं होंगे, वो सिर्फ स्पेकुलेशन लॉसेज, स्पेकुलेशन प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होंगे। वो कैरी फॉरवर्ड भी होंगे, लेकिन वो सिर्फ 4 साल के लिए होंगे, आगे चल के भी वो नॉर्मल बिजनेस से सेट ऑफ नहीं होंगे। लेकिन नॉर्मल बिजनेस का जो सेट ऑफ है वो स्पेकुलेशन बिजनेस से हो जाएगा। तो स्पेकुलेशन को उन्होंने बिल्कुल अलग रखा है। एक ऑडिट की और बता देता हूं। अब हम ऑडिट करेंगे कैसे? सपोज करो उसने स्पेकुलेशन भी किया है और F&O भी किया है, वहां टर्नओवर 50 लाख रुपए है, वहां टर्नओवर 60 लाख रुपए है, क्या दोनों क्लब होंगी 3CD के लिए? उन्होंने कहा नहीं, स्पेकुलेशन इनकम को आप बिल्कुल डिस्टिंक्ट बिजनेस रखिए, बिल्कुल सेपरेट बिजनेस, उसका कोई लेना देना नहीं है नॉर्मल बिजनेस से। तो स्पेकुलेशन की जो, अगर आप मान लो स्पेकुलेशन बिजनेस की अपनी 1 करोड़ से ऊपर हो जाए तो आप वहां पर ऑडिट करेंगे, लेकिन स्पेकुलेशन की भी 1 करोड़ से नीचे है, F&O की भी 1 करोड़ से नीचे है, तो वहां दोनों 3CD के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लब नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर रखिए कि वो एक डिस्टिंक्ट बिजनेस है स्पेकुलेशन, और F&O बिल्कुल एक सेपरेट बिजनेस है। F&O बिजनेस जितने भी आपके नॉर्मल बिजनेस है उस SSC के, उसकी टर्नओवर वहां जाके क्लब हो जाएगी। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है, क्योंकि क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलता है। सर हाँ जी। एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, अभी ले लें कि बाद में लें सर? नहीं, अगर बीच में पूछ सकते हैं तो, अगर इसी से रिलेटेड है तो पूछ लीजिए, क्योंकि वो फिर। हाँ सर, इसी से एक तो निधि अग्रवाल जी ने रेज हैंड कर रखा है बहुत देर से। निधि जी आप सुन रही हैं क्या? अच्छा सर, एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है, अभी इसी से रिलेटेड है। विशाल अग्रवाल जी कह रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ F&O इफ टर्नओवर अबव ₹15 करोड़। उसी से जुड़ा हुआ, व्हाट विल बी द डिफरेंस between F&O turnover and its profit and loss reflected as in financial statement? जी जी जी, आगे आगे। बस इतना ही लिखा है। विशाल जी आप हैं क्या? विशाल अग्रवाल जी वो होंगे, उन्होंने म्यूट कर रखा होगा। अच्छा, पहला तो मैंने समझ गया कि हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ F&O इफ टर्नओवर above ₹15 crores, it means differential turnover F&O का हम मान के चल रहे हैं। And what will be the difference between F&O turnover and its profit and loss reflected as in financial statement? सर ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं। मुझे समझ में आ गया। जी सर, जी सर। मुझे उसकी इंटेंशन समझ में आ गई कि उन्होंने क्या प्रश्न पूछा है। देखिए, जब हम F&O के टर्नओवर की बात करते हैं कि टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 44AB, तो उसकी डेफिनेशन ये है, इंस्टीट्यूट ने समझाई हुई है कि ये 3 चीजें जुड़ जाएंगी कि डेबिट 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 टोटल जोड़ लीजिए, क्रेडिट क्रेडिट टोटल जोड़ दीजिए, उनको सम कर लीजिए और जो आपने प्रीमियम पे किया वो जोड़ दीजिए फॉर द सेक ऑफ सेक्शन डिटरमाइनिंग सेक्शन 44AB।
इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। फॉर डिटरमाइनिंग ओनली सेक्शन 44AB वेदर द एसएससी इज अंडर टैक्स ऑडिट नेट और नॉट, इस काम के लिए ये टर्नओवर है, अदरवाइज इसका कोई मीनिंग नहीं। मतलब इसका मीनिंग कहां तक है कि टू डिटरमाइन द टर्नओवर एप्लीकेबल फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 44AB, मतलब एक ऑडिटर ने ऑडिट करना है या नहीं करना है, इस पर्पस के लिए उसकी टर्नओवर डिफाइंड हो गई। एक बात तो क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, वो बड़े मजेदार है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे या 3CD रिपोर्ट, जब हम वो वाला कॉलम भरते हैं 28 कॉलम, जहां हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, शायद 28 ही है, जब रेशियो एनालिसिस करते हैं तो वहां कौन सी टर्नओवर होगी, क्योंकि ये टर्नओवर तो कहीं रिफ्लेक्ट होगी नहीं। अब मैं बता दूं इंस्टीट्यूट ने यहां पर क्या कहा है एफ&ओ के ट्रांजेक्शन्स के लिए। एफ&ओ ट्रांजेक्शन में पहली बात तो वो जो टोटल ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं होता, मतलब टर्नओवर अदरवाइज बहुत बढ़ जाएगी। मैंने रिलायंस के एक लॉट खरीदी 1 लाख रुपए की और अल्टीमेटली स्क्वायर अप हो गई 1,10,000 रुपए से, 10,000 रुपए का मुझे गेन हो गया। अब वो टर्नओवर तो 1 लाख की हुई, तो मुझे 1 लाख रुपए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाने हैं, मुझे दिखाने ही 10,000 रुपए। जो अल्टीमेटली सेटल्ड हुआ, ट्रांजेक्शन सेटल होगा किसी दिन, या तो मुझे देना पड़ेगा कुछ या लेना पड़ेगा, तो वो 10,000 लॉस या 10,000 प्रॉफिट मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग टर्नओवर। अब बात आती है कि टर्नओवर डिफाइंड हो गई सेक्शन 44AB के लिए अजीब तरीके से कि प्रॉफिट 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 ले लीजिए, लॉस 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 ले लीजिए, प्रीमियम ले लीजिए, रिवर्स चार्ज ले लीजिए, ये डिटरमाइंड हो गई। लेकिन बैलेंस शीट कैसे बनेगी? बैलेंस शीट बिल्कुल अपने नॉर्मल अंदाज में बनेगी। जो आपको प्रॉफिट्स हुए हैं वहां से, उसे आपको रिसीट दिखाना पड़ेगा कि ये मेरे प्रॉफिट्स हुए एफ&ओ ट्रांजैक्शन से, और जो लॉसेस हुए हैं वो आपको लॉसेस डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा, और जो एक्सपेंडिचर है एसटीटी वगैरह, ब्रोकरेज वगैरह। हाँ, एक बात यहाँ क्लियर कर लो कि जब हम बिजनेस करते हैं, जब हम एफ&ओ करते हैं, तब ये एसटीटी के जो ट्रांजेक्शन लगते हैं हमारे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन, ये एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। लेकिन दूसरी भूल कभी मत कर लेना, जब हम इसको इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करते हैं तो जो एसटीटी के ट्रांजेक्शन है वो आपकी एक्सपेंडिचर नहीं है। ये दो बातें हमें गौर करनी पड़ेगी कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एक्सपेंडिचर कब होते हैं और एक्सपेंडिचर कब नहीं होते। जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स आपके एक्सपेंडिचर बन जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट कैसे बनेगी? जो रिसीट्स हैं आपकी, जो प्रॉफिट है वो आपकी इनकम हो गई, और जो लॉसेस है वो आपके एक्सपेंडिचर हो गए, और कुछ और एक्सपेंडिचर आपके हो गए, तो आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कन्वर्ट हो गया। तो ये तो बैलेंस शीट हो गई, इसमें तो क्लैरिटी है बिल्कुल। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और आता है कि 3CD में हम कौन सी टर्नओवर लेंगे जब हम टर्नओवर की एनालिसिस करते हैं कि टर्नओवर इतनी, प्रॉफिट इतना, वगैरह वगैरह। तो वहां पर जो टर्नओवर होगी, वहां पर जो टर्नओवर हमने 3CD के लिए डिटरमाइन की हुई है वो नहीं होगी। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में कह रहा होगा वो टर्नओवर आपकी टर्नओवर होगी वहां के लिए। ये जो टर्नओवर मैंने बताई 3CD के लिए, यानी कि 44AB के डिटरमाइन के लिए, ये एक सेपरेट चैप्टर है। बैलेंस शीट एक सेपरेट चैप्टर है। तो अगर क्वेरी उसकी शांत हो गई हो या आपकी शांत हो गई हो तो मुझे बताएं, नहीं तो मैं फिर फर्दर एक्सप्लेन करूं। अमित जी, क्वेश्चन राहुल जी ने किया था। अच्छा, बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट वो अपने को अनम्यूट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक ना फिर आपको मिलेगा नहीं, और आपके पास केसेस बहुत आने वाले हैं इस साल भी, अगले साल भी। अमित जी आगे चलें। जी सर, क्वेरीज अब लास्ट में ले लेंगे सर सेशन के, वो बेस्ट रहेगा, इकट्ठी सारी। ठीक है, तो मैं अपना सेशन को 15-20 मिनट पहले खत्म कर दूंगा। अभी कितना बजा है? 6 बज रहे हैं। हाँ, तो 10-15 मिनट मैं और ले लेता हूँ, उसके बाद हम क्वेरी सेशन लेंगे। अतुल जी ऐसे ही करेंगे? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि क्वेरीज रहेंगी। तो मैं आ रहा था कि हम देखिए 3 बातें हो गई। नंबर 1 कि सेक्शन 44AB के लिए टर्नओवर कौन सी होगी, मतलब ये डिटरमाइन करने के लिए कि वो ऑडिट कराएगा नहीं कराएगा, वो इंस्टीट्यूट की गाइडेंस नोट में है कि आपने ये कर लेना है। बैलेंस शीट कैसे बनेगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनेंगी,
बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल अपने नॉर्मल तरीके से बनेगी। वो टर्नओवर जो उसने परचेज किया या सेल किया वो नहीं डालना है, उसने अपना जो स्क्वायर्ड अप ट्रांजैक्शन होंगे उसका प्रॉफिट और लॉस ही डालना है। वो अलग अलग जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती है वैसे ही बनेगी, बैलेंस शीट भी वैसे बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा। लेकिन उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टर्नओवर हो सकता है 10 लाख रुपए दिखे, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से टर्नओवर 1 करोड़ बन जाए, क्योंकि आपने वो सम कर दिया है टोटल, क्योंकि इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस ऐसी है। अब तीसरा बात आती है कि हम सेक्शन 44 एडी में ऑडिट करेंगे नहीं करेंगे। मेरी ओपिनियन में 2 करोड़ तक करेंगे, और 2 करोड़ से ऊपर ये जज करने की कोशिश करेंगे कि उसके ट्रांजैक्शन का नेचर कैसा है। अगर उसके ट्रांजैक्शन डिजिटाइज्ड है, उसने 95% के एक्सटेंट तक डिजिटाइज फॉर्म में किया है, कैश का इन्वॉल्वमेंट कम है, यहां पर एक ईएसएससी ये काम कर सकता है कि क्योंकि उसने जितनी भी पेमेंट करी है ब्रोकर को वो तो डिजिटाइज मोड में करी होगी, रिसीव भी डिजिटाइज मोड में की होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। जो वो एक्सपेंडिचर करे, अगर उसे 44 AB से बाहर रहना है तो 95% के एक्सटेंट में जो एक्सपेंडिचर करे वो भी अपने डिजिटाइज फॉर्म में करे। जैसे हो सकता है उसने सैलरी देनी हो। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो डेप्रिसिएशन वगैरह पार्ट है वो सब बाय डिफॉल्ट डिजिटाइज मोड में माने जाएंगे, वो कैश पेमेंट नहीं है। या इस तरह के एक्सपेंडिचर हैं जो इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो डिजिटाइज मोड में माने जाएंगे, वो एक मेरे नजर में डेप्रिसिएशन ही आता है। तो सेक्शन 44 AB कहाँ लगेगा, सेक्शन 44 AD में क्या लगेगा? हमें 5 करोड़ और 10 करोड़ की भी लिमिट को याद रखना है कि डिजिटाइज मोड में हो। एक चीज और बीच में एक चीज रह गई, क्योंकि वो लास्ट टू लास्ट ईयर बजट में आई थी। बहुत सारे आजकल MNCs बच्चे हैं या जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको ESOP में बहुत सारे शेयर्स अलॉट होते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स रहती हैं। वो इंटरनेशनल मार्केट में बिकते हैं, उनको डॉलर में मिलते हैं। तो हमारा एक्ट तो ये कहता है 111A में या 112A में कि स्पेशल रेट आपको तब लगेगा 10% का या 15% का जब आप स्टॉक एक्सचेंज में बेचें और आपको STT लगी हो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाओ, वहां पर क्लियर है। लेकिन अभी उन्होंने एक एग्जिट रूट दे दिया है कि जो लोग विदेश में बेचते हैं, जो इंटरनेशनल बेचते हैं, अगर इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड है उस स्टॉक एक्सचेंज में बेचते हैं, क्योंकि वहां STT के प्रोविजंस नहीं होते, तो उन स्टॉक एक्सचेंज में भी आपको ये माना जाएगा कि आपकी STT लग गई, और उसको उसी तरह के 10% या 15%, शॉर्ट टर्म 15% और लॉन्ग टर्म आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। लॉसेस का क्या होना है? लॉसेस का मैंने बता दिया, F&O के लॉसेस आपके नॉर्मल लॉसेस के से सेट ऑफ हो जाएंगे, इवन स्पेकुलेशन के सेट ऑफ हो जाएंगे, इवन अदर हेड के, सैलरी हेड को छोड़कर सबसे सेट ऑफ हो जाएंगे। हाँ, ये लॉस जो है ये 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी होगा। ये तब तक कैरी फॉरवर्ड होगा अगर आपने रिटर्न फाइल प्रॉपरली कर लिया। वो हम सबको मालूम है, अगर रिटर्न टाइमली फाइल करते हैं तभी कैरी फॉरवर्ड मिलता है, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड लॉसेस नहीं मिलते। स्पेकुलेशन लॉसेस भी कैरी फॉरवर्ड होंगे, बशर्ते वो स्पेकुलेशन प्रॉफिट जो कल को आएंगे उसी से सेट ऑफ होंगे, और 4 साल तक ये सिलसिला रहेगा। तो इस तरह से F&O के ट्रांजैक्शन, स्पेकुलेशन के ट्रांजैक्शन हमें अच्छे से समझने पड़ेंगे। तीसरी एक और चीज होती है, जो स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन हम अच्छे से समझ लें, ये इंट्राडे ट्रांजैक्शन रहते हैं जो स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन होते हैं, और समटाइम आदमी कमोडिटी में करता है कि एक ही दिन बेचे, एक ही दिन खरीद लिए, उसी दिन खरीदे, उसी दिन बेचिए, शाम को स्क्वायर अप कर दिया सौदा, डिलीवरी लेनी देनी नहीं। F&O में भी डिलीवरी नहीं होती, लेकिन वो 43(5) में एग्जेम्पशन दे रखी है कि किसी भी तरह के इस तरह हैजिंग ट्रांजैक्शन, F&O ट्रांजैक्शन, ऑप्शन ट्रांजैक्शन स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन से हट के हैं। तो दोनों की नेचर अलग अलग है। हम लोगों के लिए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग एक चीज को अच्छे से जान लें कि दोनों में, तीनों में ट्रांजैक्शन में STT के रेट अलग अलग होते हैं। ये एक बहुत बड़ी पहचान है। और जब आप 26AS भी खोलेंगे ना, हम लोगों ने कभी गौर नहीं किया, तो वहां STT के 3 आते हैं। अगर कोई शेयर के बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करता है, अतुल जी हमारे बहुत शेयर के ट्रांजैक्शन करते हैं, इनके तो आ जाते होंगे 26AS में। तो अगर ये F&O के करेंगे, शेयर्स के करेंगे, तो वहां STT के रेट अलग अलग हैं और कोडिंग अलग अलग है, क्योंकि F&O पे STT के ट्रांजैक्शन में रेट बहुत कम है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन में कुछ ज्यादा है।
0.015 से लेके 0.25 तक है, 0.025 तक है। तो रेट्स अलग अलग है उसके। हमारे लिए ये है कि रेट्स पे ना जाओ, हम कोड से पकड़े। अगर कोड वहां डिटरमाइन है तो हमें पता लग जाना चाहिए दीज आर द ट्रांजेक्शन, एफ-एंड-ओ ट्रांजेक्शन, दीज आर इंट्राडे ट्रांजेक्शन, और बाकी डिलीवरी बेस्ड। डिलीवरी बेस्ड फिर से क्लियर कर दूं, वो इन्वेस्टमेंट के भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, और अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड में रखा है तो वहां पर वो बिजनेस ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन में बिजनेस की तरह सेट ऑफ होगा। बिजनेस ट्रांजेक्शन में एक चीज और बताऊं, डिविडेंड इनकम अगर हमारी इंडिविजुअल हैंड में हो रही है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, तो हमारे को एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होंगे कुछ भी। बस एक एक्सपेंडिचर अलाउ होता है, अगर हमने कैटेगरिकली कोई इंटरेस्ट बोरो किया हुआ है मनी फॉर दिस पर्पस ओनली, तो उसकी इंटरेस्ट वो भी 20% तक एक्सटेंट में। मान लो 100 रुपए का हमें डिविडेंड है तो मैक्सिमम इट इज 20%, यानी कि 20 रुपए अलाउ हो जाएगा। बिजनेस में ऐसा नहीं है। अगर बिजनेस में आपका डिविडेंड आ रहा है या प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो आप जेन्यून जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है और जेन्यूनली जो खर्च कर सकते हैं, जिसका आप नेक्सस लिंक कर सकते हैं अपने प्रॉफिट से, जो आपका बिजनेस से रिलेट कर सकता है आपका, चाहे आपकी गाड़ी है, चाहे आपके स्टाफ है, आपका एसी, कंप्यूटर और ये सारी चीजें जो भी यूज हो रही है आपके इस बिजनेस में, वो सारा एक्सपेंडिचर अगर नेक्सस लिंक हो जाता है तो वो आपको सारा मिलेगा। दिस इज अप टू यू कि आप उसे कैसे रखते हैं। एक और चीज, आप साइमल्टेनियसली दोनों व्यापार कर सकते हो। आप कुछ शेयर्स को, कुछ म्यूचुअल फंड्स को अपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हो, कुछ शेयर्स म्यूचुअल फंड्स को आप बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह रख सकते हो, जैसे स्टॉक इन ट्रेड। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे एक कोई ज्वेलर है, ज्वेलर में आपने देखा होगा उसका स्टॉक इन हैंड ही ज्वेलरी होता है, लेकिन उसके कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं, तो वो जब बेचेगा तो उसे इन्वेस्टमेंट की तरह कैपिटल गेन अराइज होगा वहां पर। अगर इससे स्टॉक इन ट्रेड में दिखाया हुआ है तो उसे बिजनेस गेन की तरह होगा। ऐसे ही वाइस वर्सा, इसमें भी यही चीज पॉसिबल है कि आप स्टॉक इन ट्रेड में दिखाइए तो आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह लगेगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट होल्डिंग की हुई है तो वहां पर कैपिटल गेन लगेगा। एसटीटी के केस में मैंने बताया, एसटीटी के केस में इन्वेस्टमेंट जब आप करेंगे तो एसटीटी आपको अलाउ नहीं होगी एज ए एक्सपेंडिचर, और बिजनेस के केस में वो अलाउ होगी। तीसरा ट्रांजैक्शन मैंने बताया एफ-एंड-ओ ट्रांजैक्शन। एफ-एंड-ओ ट्रांजैक्शन इंट्राडे ट्रांजैक्शन से अलग है, स्पेकुलेशन से अलग है, कैरी फॉरवर्डिंग अलग है। 44 एडी मिलेगा, 6% दिखाना पड़ेगा, लेकिन 6% दिखाने से पहले ये देख लीजिए, अगर उसकी टोटल इनकम ही 2.5 लाख से नीचे है, जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो है, तो उसको अगेन 2 करोड़ से नीचे, 1 करोड़ से नीचे उसको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं। 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ के बीच में चाहे उसकी इनकम जितनी भी है आपको ऑडिट करनी पड़ेगी, क्योंकि सेक्शन 44AD 2 करोड़ तक जरूर है, लेकिन सेक्शन 44AB जो स्टार्ट होता है वो 1 करोड़ से स्टार्ट होता है। शायद गवर्नमेंट की इंटेंशन ये है कि 1 करोड़ से ऊपर ऑडिट के जितने भी प्रोविजंस है वो ये भी कह सकते थे, ये 5 करोड़ 10 करोड़ की स्ट्रेट अवे लिमिट कर सकते थे। आज तक नहीं कि 1 करोड़ रखी है, उसमें बीच में 2 करोड़ रुपए इसलिए डाले उन्होंने कि 1 करोड़ से जब आप ऊपर कर देंगे अपनी टर्नओवर को, तो आपके पास टीडीएस वगैरह के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। 1 करोड़ को इसीलिए वो लोग नहीं हिला रहे ताकि हर एसएससी को टीडीएस की जो बंदिश है वो बनी रहे। 1 करोड़ से ऊपर होते ही वो ऑडिट के ग्रिप में आ जाता है, भले ही बाई वर्च्यू ऑफ सेक्शन 44AD में वो 6% या 8% करके कम करके ले जाए, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर टीडीएस के सारे प्रोविजंस जितने भी सेक्शंस हैं 194 के वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। स्पेकुलेशन मैंने बता दिया कि इंट्रा सेट ऑफ नहीं होते। सर अतुल जी, मैंने तो ये डिटेल में अपनी बातें जो रख सकता था रख दिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, स्पेकुलेशन, एफ-एंड-ओ, हो सकता है कुछ मेंबर्स के लिए कुछ चीजें नई भी हों, तो क्योंकि अब ऑडिट आने वाला है। अब आप देखेंगे अगले महीने आपके पास इतने बल्क में होंगे लोगों के, इतने बल्क में होंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि सर फाइनेंशियल ईयर 2021 में ही बहुत ज्यादा इसमें वैल्यूम बढ़ा है। यस। और जैसा आपने भी कहा था और मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ खाली घर में बैठे थे, तो सर एक तो कोरोना पीरियड में रामायण महाभारत अच्छे से देखा लोगों ने, उसके बाद और भी तमाम सारे सीरियल देखे, लेकिन साथ ही साथ ये भी हुआ कि करें क्या।
तो शेयर मार्केट में टीवी खोल लिया या मोबाइल पे देख लिया तो उससे इंटरेस्ट क्रिएट हुआ लोगों का, और जरूर कहीं ना कहीं नए बहुत से इन्वेस्टर आ गए। और सर इस बीच में अगर किसी ने कोरोना पीरियड में कोई इन्वेस्टमेंट किया था, डिलीवरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट किया था, मुझे ऐसा लगता है कि वो सब अगर अच्छे शेयर में किया है तो सब 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स सब 100 टाइम्स तो 100 टाइम्स तो बाय डिफॉल्ट बढ़ ही गया है। सर हमारे विष्णु माहेश्वरी जी हैं कानपुर के, वो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं वेरी वेल डिलीवरेशन बाय राणा सर। जी वो भी शेयर मार्केट में डील करते हैं। और क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, शुरुआत में मैंने कहा था कि हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अभी भी देखिए आपने 1-2 बार पूछा तो हमने भी गलती से हमने भी कह दिया हाँ सर ऑडिट होगा, लेकिन फिर आपने क्लियर किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को एक्ट या रूल्स या क्लेरिफिकेशन पढ़ने से क्लियर नहीं हुई थी, वो सर आज जरूर क्लियर हुई है। सर सेमिनार्स का मतलब ही यही है। जी जी मुझे भी बहुत फायदा मिलता है कि मैं भी छोटे छोटे फुल स्टॉप कॉमा का डिफरेंस देता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फर्क पड़ेगा आज आपके इस डिस्कशन के बाद से। और अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सर। राहुल जी आप टेकअप करेंगे? सर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर मैं दे। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देख लेता हूँ, कुछ रह जाएगा तो आप भी देख लीजिएगा। जी सर। ये विशाल अग्रवाल जी का तो हो गया था। उसके बाद विशाल अग्रवाल जी फिर लिख रहे हैं हाउ विल बी एफएनडो स्क्रिप्ट नॉट क्लोज्ड बाय ईयर एंड शोड इन बैलेंस शीट एंड हाउ टू डिटरमाइन इट्स क्लोजिंग वैल्यू। हाउ विल बी, अच्छा सर फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं कि हमने कोई कॉल है या पुट है या कोई फ्यूचर खरीदा और वो 31 मार्च को वो अभी स्क्रिप्ट स्क्वायर अप नहीं हुई है, तो अगर बुक्स मेंटेन कर रहे हैं तो बैलेंस शीट एंड उसको कैसे, उसकी क्लोजिंग वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे सर? एक तो ये पूछ रहे हैं वो। जी जी सर ऐसा है कि इंस्टीट्यूट की गाइडेंस नोट क्लियर कहती है जब तक वो सौदा स्क्वायर्ड अप नहीं होगा, उसकी वैल्यू प्रॉफिट या लॉस में कन्वर्ट नहीं होगी, आपको बुक में एंट्री नहीं करनी है। मींस जो आपने लॉट खरीदी उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालनी है। अगर वो सौदा 31 मार्च तक उसका स्क्वायर्ड अप हो गया, सपोज करो फर्स्ट को हो जाता है, वो 31 मार्च के उसमें आएगा, तो वो तो आप डाल सकते हैं। लेकिन जो 31 मार्च के बाद ही उसके स्क्वायर्ड अप होना है, उसको आप एंट्री को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना डालिए। ओके सर। निधि अग्रवाल जी आप हैं क्या? आपका रेज हैंड दिख रहा है, मैं भी, और भी रेज हैंड दिख रहे हैं। विजेंद्र जैन जी हैं। विजेंद्र जैन जी आर यू देयर? राजेंद्र कनोडिया जी, अरविंद गुप्ता जी, राजेंद्र कनोडिया जी। हो सकता है कभी कभी गलती से हो जाता है और क्वेरी ले लीजिए। हाँ जी जी जी। नेहा जैन जी कह रही हैं कि सर इफ ए पर्सन इज डूइंग एफएनडो ट्रेडिंग एंड इज आल्सो रनिंग ए नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस declaring profit as per section 44 AD, so can he sum up both business income or do he needs to get audit and for F&O business? देखिए सेक्शन 44 AB के लिए उसकी दोनों टर्नओवर क्लब हो जाएंगे। एफ&ओ बिजनेस है बिल्कुल नॉर्मल बिजनेस की तरह। एफ&ओ की बस ये कैलकुलेशन जो टर्नओवर की है वो मेरे बताए हिसाब से करनी पड़ेगी। जो इंस्टीट्यूट ने रास्ता बताया हमें कि टोटल ऑफ लॉसेस टोटल ऑफ प्रॉफिट को ऐड कर लीजिए, प्रीमियम जोड़ दीजिए, वो टर्नओवर हो गई। नॉर्मल बिजनेस की जो टर्नओवर है पहले तो ये डिटरमाइंड हो कि ये बंदा ऑडिट में आएगा नहीं आएगा। ये बात की बात है कि हमने 44 AD का कैसे डिटरमाइन होगा। अगर उसकी टोटल टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे रही तो वो 44 AD का उसके पास ऑप्शन है, अदरवाइज वो ऑप्शन नहीं है। तो वो 6% और जो भी 8% की क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। अगर उसका मान लो नॉर्मल बिजनेस जो है वो कैश का ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो वो 8% चूज करना पड़ेगा, और ये एफ&ओ वाला बिजनेस यूजुअली 6% के क्राइटेरिया में आता है तो 6% चूज करना पड़ेगा। और 6% और वो टर्नओवर को तोड़ भी सकता है। जितनी टर्नओवर उसकी डिजिटाइज मोड में है वो 6% ले ले और बाकी को 8% ले ले, सब्जेक्ट टू टोटल टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर ना हो। 2 करोड़ से ऊपर होते ही तो डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा।
कि उसका तो ऑडिट में आ ही गया। मयंक रस्तोगी जी पूछ रहे हैं कि फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस ऑन डिलीवरी बेसिस ओनली, इट शुड बी कवर्ड अंडर पीजीबीपी और कैपिटल गेन। ये मैं बता चुका, एक ना 2007 तक सिचुएशन सब गड़बड़ थी जी। तो 2007 में एक सीबीडीटी सर्कुलर लाई, उसमें बहुत सारे मेथड डिटरमाइन किए थे कि आईटीओ इस तरह से मेथड डिटरमाइन करे। वो पूरी की पूरी मेमो है, एक लंबी सी गाइडलाइंस है, उसमें 20-25 पैरामीटर्स थे, उस हिसाब से ये आईटीओ निकाल लेते थे। जी जी जी। तो सर मेरा, हाँ, बोलिए बोलिए। एक केस जरूर लिख लीजिए, एक लिख लीजिए, एसोसिएटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का एक केस है। एसोसिएटेड डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। जी जी। तो यहां पर आईटीओ ने डिटरमाइन किया था उस मेथड से जो सीबीडीटी ने बताया था, सर्कुलर 2007 का। जी जी जी। तो उसके बाद एक विवाद ये पैदा हो गया इस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद कि ऐसे तो आईटीओ अपने हिसाब से करने लग जाएंगे। तो वो चलता 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 10 साल चला, लेकिन 2016 में अब सीबीडीटी इज वेरी मच क्लियर, अब कोई डाउट नहीं है। अगर आपने उसको स्टॉक्स की तरह रखा है अपनी बुक्स में तो वो बिजनेस है, और इन्वेस्टमेंट की तरह। अब ना वॉल्यूम की बात है और ना आपकी फ्रीक्वेंसी की बात है, अब कोई बात नहीं है। अगर शेयर्स के केस में, लिस्टेड कंपनी के शेयर में आपकी इंटेंशन अगर उसे स्टॉक इन रेंट रखने की है तो स्टॉक इन रेंट रखिए, बिजनेस इनकम की तरह दे दीजिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहते हैं, क्योंकि अब ट्रांजैक्शन इसमें हो जाते हैं, आप उसको अलग अलग रख सकते हैं, और वो जो आपका ब्रोकर है वो भी आपको दे सकता है, इसलिए वॉल्यूम की बात ही नहीं रही। पहले वॉल्यूम की बात होती थी जब ये प्लेटफॉर्म नहीं थे। तो सर सीबीडीटी का सर्कुलर नोट कर लीजिए, 2016 में आया था, उसमें उन्होंने बिल्कुल एसएससी के ऊपर छोड़ दिया है कि अगर वो स्टॉक इन ट्रेड में रखना चाहता है तो उसकी इंटेंशन, अगर इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो इंटरचेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे अतुल जी आपने देखा होगा कि अगर मैं अपनी ज्वेलरी अपने बिजनेस में लाना चाहता हूं तो वहां पर मुझे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। जब वो सेल होगी तो उतने पोर्शन में मुझे लॉन्ग टर्म देना पड़ता है, वो बाकी बिजनेस इनकम में जाता है। तो ये भी मैं कर सकता हूँ बशर्ते कि मैं उस पर टैक्स चुका दूं। तो वो सीबीडीटी का सर्कुलर बिल्कुल क्लियर है, ये अभी 2016 का है शायद, वो सर्कुलर नंबर 6 है, सर्कुलर नंबर 6। हाँ आपने बताया था सर्कुलर नंबर 6 आपने बताया था। हाँ जी जी। सर मेरा अपना ही एक केस है, मेरे बहन साहब जो है वो शेयर मार्केट में बहुत डील करती हैं। हाँ जी, मेरी बहन साहब शेयर मार्केट में बहुत डील करती हैं सर। अच्छा। और लेकिन करती क्या है कि बहुत छोटी क्वांटिटी में करती हैं। जैसे उन्होंने 50 स्टेट बैंक खरीदे, फिर 100 स्टेट बैंक खरीदे, फिर 10 खरीदे, तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन उनके बहुत हो जाते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई आप इतने ट्रांजेक्शन मत किया करो, इतनी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी हमको। तो अभी तो हम सर उसको कैपिटल गेन ही मान के चल रहे हैं, लेकिन मेरे माइंड में ये रहता है कभी ऐसा ना हो कि पार्टनर कैश टू आर ट्रेडर ऑन रेगुलर बेसिस, देन व्हाई it should not be taken as business। कभी-कभी मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम लोग तक पहले इनकम टैक्स में चेक कराने जाते थे तो ऑफिसर ऐसा बोलता था कि भैया हम तो इसको बिजनेस इनकम मानेंगे। बिल्कुल यही बोलता था जी सर। तो अभी सर क्या इसका स्टेटस है? अभी मतलब अभी ऐसा तो नहीं कि हमको कैपिटल गेन मान के चल रहे हैं और वो बिजनेस इनकम में जो आपने सर्कुलर बोला ठीक है। मैं क्लियर कर देता हूँ। सर बस मैडम को ये कह दीजिएगा कि उसमें ट्रांजैक्शन से अब कोई मतलब नहीं। ट्रांजैक्शन के लिए तो आपका 2006 का सर्कुलर जो है, 2016 का सर्कुलर है 6 नंबर, वो काम करेगा। जी सर। बट ऐसा ना करें कि आज तो स्टेट बैंक से मोहब्बत कर ली, कल फिर बेच दिया, परसों फिर खरीद लिया उसी शेयर को। इसका मतलब यू आर नॉट बाइंग फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। आपको उससे मोहब्बत ही नहीं, आप सुबह खरीदा और दूसरे दिन बेच दिया, फिर उसी दिन खरीद लिया। इट मीन्स कि आपने कोई रिसर्च नहीं करी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये ट्रांजैक्शन भी आप ज्यादा कर लेते हैं तो ये जो सर्कुलर है 2016 का, ये भी ओवरराइड हो जाएगा। सर हम बताएं कैसे, मतलब ये सब प्रॉब्लम मेरी वाइफ नहीं है, ये बहुत सारे मेरे दोस्तों की है। जैसे सर हमारे पास, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ये बहुत खूबसूरत होगा सभी जो हमारे दिन पर सुन रहे हैं। मेरे पास 500 स्टेट बैंक थे, मैंने देखा कि मेरी बाइंग रेट 300 रुपए आ रही है, अभी 425
300 बेच दिए, और जब वो 370 आया तो मैंने 300 खरीद लिए। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन होते हैं सर, मतलब ऐसा नहीं होता कि वो शेयर हम बिल्कुल छोड़ दें, ये तो सर कभी होता ही नहीं है। बिल्कुल, आप एवरेजिंग करते हैं और आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और जब फिर मार्केट कभी 6 महीने में, 8 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में गिरेगी, तो हम फिर सर लालच में फिर वही शेयर खरीद लेते हैं कि मेरे को 50 रुपए का बिल्कुल प्रॉफिट हो ठीक रहा है, और ये 50 रुपए जब फिर ये शेयर छोड़ना नहीं है, शेयर से मोहब्बत हो गई सर। ऐसे ही होता है सर, ऐसे ही सभी लोग करते हैं, एवरेजिंग करते हैं। तो वो प्रॉफिट बुक किया और एवरेजिंग की। देखिए अतुल जी, अगर आप उसको मेंटेन कर सकते हैं और स्टॉक टू स्टॉक आप बता सकते हैं फिफो बेसिस पर और उसका प्रॉफिट डिटरमाइन कर सकते हैं, तो कोई आईटीओ आपको स्टॉप नहीं कर सकता। आप इस सर्कुलर का हवाला देके एकदम आप बाहर निकल सकते हैं कि मैंने शुरू से इसे इन्वेस्टमेंट दिखाया है। अगर आप कंसिस्टेंटली लास्ट ईयर भी अगर वो आपने स्टॉक खरीदा जो और बेचा, उस पे आपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दिया है, तो मैं आपको, क्योंकि मैं आईटीएटी की बहुत प्रैक्टिस करता हूं, तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको वो स्टॉक इन हैंड में नहीं ले जा सकती जब तक आप उसमें इंटेंशन नहीं दिखाएंगे। अगर आपने एक बार अपनी ओपिनियन बदल दी कि मैं तो इस बार मुझे स्टॉक दिखाने में ज्यादा फायदा है, तो आप फंस गए। फिर वो आपका लॉन्ग टर्म सब मारा जाएगा, जो आपने 3 साल पहले भी लिए थे वो सब स्टॉक इन हैंड में आ जाएंगे। तो बस आप अपनी इंटेंशन को चेंज मत करिए। आप इन्वेस्टमेंट बाइंग कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट बाइंग कर दीजिए, और भाभी जी को कह दीजिएगा वो खूब बाई कर रहे हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट तरीके से बाई करती रहे, कोई दिक्कत नहीं सर, वो कभी कभी मतलब ऑन द लाइटर साइड है, वो कहती है कि आप सीधे होकर नहीं कर पा रहे हो, हम अपना सीधे बदल लेंगे। अच्छा जी, हाँ बाई गॉड, कई बार नहीं तो मुझसे बात करा दीजिएगा। एक चीज और नोट कर लीजिए मेरी, जिसको मैं बार बार रिपीटेडली कह रहा हूँ सर, वो ये है, जो एसटीटी उस पर लगता है जी सर, उसको एक्सपेंडिचर क्लेम करने की गलती मत करना। नहीं करते सर। 3 बार लिख लीजिए कि एसटीटी को आप नेट परचेजिंग को मत लीजिएगा, क्योंकि जो एसटीटी है ना, वो सेक्शन 111 ए और 112 ए को डिटरमाइन करने के लिए आप एसटीटी पे करके ही आप लोअर रेट जो 10% और 15% के हैं वो तभी अवेल कर रहे हैं जब आपने एसटीटी नहीं ली अपने एक्सपेंडिचर में। अच्छा, वो मत लीजिएगा। मतलब तो ये बात नहीं, आपने जो ग्रॉस परचेजेस हैं या ग्रॉस सेल है वही आप लेंगे। हाँ, इसमें ब्रोकरेज लेस कर सकते हैं, एसटीटी को लेस करने की कोशिश मत करिएगा। जैसे ही आपने एसटीटी को एक्सपेंडिचर का पार्ट माना, आपकी बिजनेस इनकम में आईटीओ जोड़ देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सर मैं एक्टफुली बात कर रहा हूँ, सेक्शन 111 ए और 112 ए को रीड आउट करिएगा। उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि बिकॉज यू आर पेइंग एसटीटी, therefore you are availing this concessional rate of 15% or 10% whatever. Because of this only STT you are paying or not claiming as an expenditure, then only you are getting this benefit 10% or 15% under income tax act. क्योंकि वो STT दे के ही आप क्योंकि बेनिफिट ले रहे हैं और उसमें भी बेनिफिट ले रहे हैं, आप उसको एक्सपेंडिचर भी क्लेम करेंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना सर, आप STT क्लेम नहीं कर सकते। STT सिर्फ बिजनेसमैन क्लेम कर सकता है एज ए एक्सपेंडिचर। वो एसटीटी इस बात का प्रतीक है कि आपने इन्वेस्टमेंट बाइंग की हुई है, क्लेम नहीं करिएगा उसको, बता दीजिएगा मेरी बात। अच्छा सर, ये मैं जो मीडिया में पूछ रहे हैं, ये बात भी सही है, इनका सवाल भी मेरे में था जो मैंने वही नोट करी। इन एफएनडो देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। सर लाउडली बोलिए, थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही। अच्छा सर, इन एफएनडो देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, हाउ टू रिकॉर्ड देम? तो सर अभी भी लो है, वॉल्यूम लो है सर। अच्छा, वॉल्यूम कम आ रहा है। ओके, एक सेकंड। इन एफएनडो देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, सो हाउ टू रिकॉर्ड देम? ये इसका तो कोई ऑप्शन है नहीं सर, मेरे मुझे लगता है, क्योंकि वो तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन सारे रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। नहीं सर, बहुत आसान है, मैं बताता हूँ कैसे। जी सर। इसे ना एक्सेल शीट में मंगा लीजिए, ऑनलाइन मंगा लीजिए। ठीक है। एक्सेल शीट में चाहे 1000 पेपर हो, चाहे 2000 पेपर हो, चाहे 10,000 पेपर हो, जी सर, वो फटाक से उसके टोटल कर देता है नीचे। मुझे ये मालूम है, जब एक ही सीरीज में आ रहे हैं तो उसके टोटल वो नीचे कर देता है। आप गलती क्या कर रहे हैं, हम लोग पीडीएफ फाइल में मंगा रहे हैं। अब इन्होंने ना चाहे एनएसडीएल की साइट हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे शेयर्स हो, चाहे और भी कोई भी ब्रोकिंग कंपनी है, वो एक्सेल शीट में दे देती है शीट्स। आप उसे ऑनलाइन मंगा लीजिए।
आप एक्सेल शीट में डाउनलोड कर लीजिए और उसका टोटल सेकंड्स में लगता है, क्योंकि वो एक्सेल ने करना, आपने तो करना नहीं, स्टाफ ने करना नहीं। जी तो जी नीचे जी नीचे कमांड मारिए, वो एक टोटल हो जाएगा। ट्रेड का जो प्रॉफिट का पोर्शन, लॉस का पोर्शन, दोनों को ऐड कर दीजिए, वो आपकी टर्नओवर बन जाएगी। उसके बाद करना ही क्या है, कुछ भी नहीं करना है, प्रॉफिट लॉस सामने। अच्छा सर, ये जो डिलीवरी बेस्ड है, मयंक रस्तोगी जी में ये लिखा है कि जो डिलीवरी बेस्ड होता है सर, उसमें तो सर ISIN वाइज जो है वो ITR में फिल करना होता है। अब तो ऐसी, हाँ तो बिल्कुल ठीक इसका कह रहे हैं। तो इसका तो सर कोई इसमें भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस बहुत हो जाते हैं, तो हाँ, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, इसमें तो कोई नहीं, ऑप्शन है नहीं। मैं ऑप्शन बता देता हूँ, मैं हूं ना। अच्छा अच्छा, अरे क्या तो वो बात है सर। शाहरुख खान एक फिल्म में कहता ना, मैं हूं ना। जी सर जी सर जी सर। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये मैंने नहीं इजाज किया, मेरे स्टूडेंट ने इजाज किया, अभी अभी परसों की बात है। अच्छा अच्छा। उन्होंने क्या किया, हम्म, ऐसी सारी लिस्ट जो परचेज सेल्स हुई है, ये NSDL और जो ब्रोकर कंपनी है ना, वो एक एक्सेल की एक यूटिलिटी में देती है। तो वो यूटिलिटी को डाउनलोड करते हैं ना जैसे ही हम, और उसकी यूटिलिटी में, इनकम टैक्स की यूटिलिटी में जब डालते हैं तो पूरा का पूरा ऐसा सेट हो जाता है। जी म्यूचुअल फंड में भी हो जाता है, शेयर्स में भी हो जाता है। ब्रोकर को ये बताइए कि जो यूटिलिटी ISIN कोड नंबर वाइज है और एक्सेल शीट है, वो तुम्हें, तो हमें उस यूटिलिटी में दे दे जो इनकम टैक्स में सेट हो जाए। तो वहां पर एक यूटिलिटी है, दो ऑप्शन रहते हैं, ये यूटिलिटी फॉर इनकम टैक्स पर्पस, वो जैसे ही उसको डाउनलोड करते हैं ना और उसको वहां पर आप अपलोड करते हैं, तो पूरी की पूरी एज सच अपलोड हो जाती है। अदरवाइज एक एक ट्रांजेक्शन वाइज आपको करना पड़ता है। जी जी सर जी। सॉफ्टवेयर तो में ये भी यूटिलिटी होती है, सॉफ्टवेयर की यूटिलिटी में भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो एक्सेल शीट से और फिर वो इंपोर्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सॉफ्टवेयर में भी यूटिलिटी है। आप अगर कंप्यूटेक्स वगैरह किसी भी सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं, अगर आपको उस डिजाइन में वो मिल गया एक्सेल शीट में, तो वो वहां से यूटिलिटी एक्सपोर्ट कर लेगा। इवन म्यूचुअल फंड्स में भी NSDL की साइट पे जो कैपिटल गेन पोर्शन है ना, वो एक साथ ले सकते हो आप, वो भी एक्सेल पे मंगाइएगा, क्योंकि अगेन आपके स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी कि एक एक एंट्री डालेगा वो, अदरवाइज वो एक्सेल फॉर्मेट में पूरा टोटल लग के आ जाता है। आजकल लोग STT ट्रांजेक्शन करते हैं, SIP ट्रांजेक्शन करते हैं, वहां भी यही प्रॉब्लम है। 12 महीने का शॉर्ट टर्म, 1 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म, पता लगा उसकी SIP STP चल रही है और उसने आज पूरा स्विच मार दिया, तो लास्ट 12 ईयर के तो वो 15% से आ रहे हैं, उसके ऊपर 10% के आ रहे हैं। अगर डेट है, डेट से स्विच मारा है तो डेट वाला लग रहा है 20% का, वगैरह वगैरह। तो ये सब ना, क्योंकि मैं लगभग 100 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, तो वो मुझे मालूम है कि वो यूटिलिटी से आप अपने उसको बोलिए AMC वाले को, वो प्रोवाइड करेगा उसमें एक्सेल मोड में। एक्सेल मोड में ले लीजिएगा, PDF मोड में नहीं लीजिएगा। ठीक सर। एक्सेल मोड में लेंगे तो आप अपने उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है सर। लास्ट 2 क्वेश्चंस आर विद मी। वन इज फ्रॉम अरविंद गुप्ता जी। अरविंद गुप्ता जी कह रहे हैं कि मैं पिछले 3 साल से शेयर को होल्ड कर रहा था, लेकिन मैंने अब अपनी ट्रेडिंग शुरू कर दी है, तो प्लीज एडवाइस कन्वर्जन ऑफ बिजनेस, कैसे कन्वर्ट, क्या टैक्स लायबिलिटी आएगी। 3 साल मैंने शेयर होल्ड किया, नाउ आई एंटर्ड इन द ट्रेडिंग। मेरी ये सलाह है कि ये ना दोनों काम कर सकते हैं। जो इन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे हैं, उसे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखें, और जो आज से ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं जी सर, उसमें दूसरे कर सकते हैं। जो स्टॉक इन ट्रेड में ये दिखाना चाह रहे हैं आज से, वो तो इनके स्टॉक इन ट्रेड में ट्रीट होंगे। जो आज से पहले थे वो आप इन्वेस्टमेंट वो भी कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे ज्वेलर के पास अपनी ज्वेलरी भी होती है, अपनी पर्सनल, वो जब बेचेगा तो उसे इन्वेस्टमेंट की तरह आएगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी होगा। और जो उसकी दुकान पे बिक रहा है माल, वो स्टॉक इन ट्रेड की तरह होगा, तो उसे वो बिजनेस। तो दोनों तरीके से कर सकते। अगर इनको वैसे फायदा है कि अपने पुराने स्टॉक्स को बिजनेस में लाना चाहते हैं, तो वो सेक्शन 45 के वो प्रोविजंस पढ़ लें कि वो अपने बिजनेस में ला सकते हैं। और जब बिकेगा तो उस पोर्शन पे, जब उन्होंने बिजनेस में लाए थे वहां तक का उनको कैपिटल गेन देना पड़ेगा, उसके बाद बिजनेस प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो वो बीपी उसका वो बिजनेस की तरह लग जाएगा, और वहां तक का कैपिटल गेन बहुत दोनों ही प्रोविजन उनको मिल जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। वो तो हमने पढ़ा हुआ है ना, वो जब स्टूडेंट थे तभी पढ़ते थे कि जी जी जी, कन्वर्जन। हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही प्रोविजन यहाँ भी लगेंगे कि वहां तक का कैपिटल गेन और उसके बाद का बिजनेस का। जिस दिन इनकी इंटेंशन बिजनेस में डालने की होगी, लेकिन प्रॉफिट टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स तब लगेगा जब वो शेयर बिकेगा। तो शेयर बिकेगा तो 2 टुकड़े होंगे, जिस दिन बिजनेस में लाए वहां का प्रॉफिट बिजनेस का, और उसके ऊपर का प्रॉफिट
इन्वेस्टमेंट का। तो ये दोनों वो कर सकते हैं। Thank you, sir. Last question with me is from Hina Batra ji. एक और आ गया है, 2-3 और हैं सर. Sir, if you do daily intraday transaction, then how to deal with it and how to show it as its extra income other than profession? Extra income other than profession? नहीं, जी सर इंट्राडे वो स्पेकुलेशन की श्रेणी में आता है, वो अदर इनकम भी दिखा सकते हैं, एसटीटी लगता है उसमें, स्पेकुलेशन के सारे लगेंगे। सेक्शन 43(5) में स्पष्ट है कि वो स्पेकुलेशन की तरह ट्रीट होगा और वहीं दिखाना पड़ेगा उसे। ठीक है सर, ठीक है। सर मैं ले लेता हूँ बाकी। हाँ ले लो प्लीज। हाँ राहुल प्लीज ले लेता हूँ सर। नेक्स्ट क्वेरी है विशाल अग्रवाल जी की। How to determine value of unlisted shares like NSE shares as per section 56 if investment and will be applicable if traded as business asset? सर वो तो इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल ये जो उसकी वैल्यूएशन है, अभी वैल्यूएशन कोर्स जो किया है वो डिटरमाइन करेगा, क्योंकि वो बैलेंस शीट वगैरह उसका पूरा फॉर्मेट है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अब वैल्यूएशन उसमें हो गए हैं, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी, मोस्टली कंपनी सेक्रेटरी उसकी वैल्यूएशन करते हैं। जो अप्रूव्ड सर्टिफाइड वैल्यूअर है वो वैल्यू करेगा उसकी, तो वो वैल्यू मानी जाएगी कॉस्ट ऑफ उसकी एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ वहां तक की कॉस्ट उसकी। The next question है मयंक डिंगरा जी का। Last year assessee has considered shares as investment and FAO and F&O as business. In current year, assessee has incurred huge loss in F&O and got gains in shares. Can he show the shares as business income and convert the shares as business stock? नहीं, वो जो मेथड पहले अडॉप्ट कर रहा था, अगर उसने बिजनेस का दिखाया तो बिजनेस ही दिखाना है, और अगर उसने इन्वेस्टमेंट दिखाया तो इन्वेस्टमेंट दिखाना है। वो अपने टैक्स की सहूलियत से इंटरचेंज नहीं कर सकता। आवाज चली गई। आवाज नहीं आ रही थी सर आपकी। विशाल अग्रवाल जी का एक क्वेश्चन है, हाउ विल बी F&O scripts not closed by year end showed in balance sheet and how to determine its closing value? नहीं, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी नहीं करना है। जब आप परचेज करते हैं किसी लॉट को, तो वो ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड नहीं करना है इवन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जब तक वो ट्रेड सेटल ना हो। आई थिंक सर क्वेरीज हो चुकी है, तो थैंक यू वेरी मच सर for benefiting all of us with your valuable information and experience. Now to deliver the vote of thanks, I would hand over the mic to Sri Ashish Agrawal ji, Secretary Jabalpur branch. Ashish sir. Thank you Rahul ji, thank you. धनबाद से आए थे राहुल जी, चले गए क्या? धनबाद वाले चेयरमैन साहब नहीं दिख रहे हैं सर शायद वो करिए। आशीष जी प्लीज कंटिन्यू। Thank you. I would like to thank first of all the eminent speaker for today. सर मैं बहुत अच्छे से सर आज का टॉपिक जो है टैक्सेशन ऑन इनकम ऑफ शेयर्स एंड डेरिवेटिव्स, सर यू हैव टेकन द टॉपिक फैंटास्टिकली। सर ये बड़ा ही क्लिष्ट टॉपिक है सर, और इसमें जो है चीजें जो है आज हम समझते हैं कि हम सीख गए हैं, लेकिन सर आप सही कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ते हैं तो लगता है यार हमको तो कुछ आता ही नहीं है। मुझे भी लगता है सर आपने इतने अच्छा, क्योंकि क्या रहता है सर इसमें इतनी सारी चीजें हैं, इतनी पिक्युलरिटीज हैं, कभी शेयर उसने खरीद लिया, कभी शॉर्ट टर्म में ले लिया, कभी सर वो बिजनेस में दिखा दिया, कभी सर वो F&O ट्रांजैक्शन है, फिर सर कौन सी चीज सब इंपॉर्टेंट सबसे सर कौन सी चीज किससे सेटअप होगी, कौन सा लॉस किससे सेटअप होगा, कौन सा लॉस जो है वो सेटअप होगा। एक बिजनेस सर हो सकता है कई बार वो मल्टीपल बिजनेस भी रन कर रहे हैं, मतलब शेयर का काम भी कर रहे हैं, हो सकता है कोई प्रोफेशन भी कर रहे हैं या दूसरा बिजनेस भी कर रहे हैं, तो उस पर एक प्लानिंग करना कि कब वो जो है एक इसका जो शेयर, जब अधिकतर लॉस होता है सर, अधिकतर क्लाइंट जो हमारे होते हैं वो लॉस ही लेके आते हैं सर, प्रॉफिट तो कम ही लेके आते हैं, लेकिन किसका लॉस किसके प्रॉफिट का सेटअप होगा सर, वो भी एक बड़ा टिपिकल चीज रहती है। सर यू हैव टेकन दिस इज वेरी गुड मैनर। सर हम आगे भी सर आपसे जो है आपसे टच में रहेंगे और आपसे सर मार्गदर्शन चाहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। I would like to also like to thank the session chair for today, Atul Mehrotra sir, the regional council
फॉर कोऑर्डिनेटिंग। सर ही जो है कड़ी हैं जिन्होंने सबको आपस में जोड़ा है। सर थैंक यू फॉर कोऑर्डिनेटिंग और सर हम सबका को मार्गदर्शन देने के लिए थैंक यू अतुल मल्होत्रा सर। I would also like to thank the chairman of the Gwalior branch, Atul Amit Kumar Agrawal ji, Secretary Rahul Gupta ji, and whole managing committee of Gwalior branch for co-hosting this event. I would also like to thank CA Prateek Gendriwal ji, Chairman Dhanbad branch, and CA Rahul Kumar Agrawal ji, Secretary Dhanbad branch, and whole managing committee of Dhanbad branch for co-hosting this event. Thank you very much. थैंक यू आशीष भाई। सर मेरा एक रिक्वेस्ट था कि अगर आप अपने पीपीटी सर शेयर कर देते तो हम लोग यहाँ सर्कुलेट कर देंगे। सभी मेंबर्स का एक्चुअली मैसेज आ रहा है कि पीपीटी आपके लिए, आपकी सर पीपीटी के लिए। हाँ, मैंने पीपीटी इस रास्ते से हटा ली कि मैं साफ साफ दिखाई दूं, और बोलना तो मैंने बिना पीपीटी के है ही है। बार बार पीपीटी को हटाओ फिर लगाओ, फिर हटाओ फिर लगाओ, वो रिदम टूट जाती है और मजा नहीं आता है। सर आप कर दीजिएगा मेरे को, मैं तीनों ही लोगों को, आशीष जी को, राहुल जी को और प्रतीक जी को, मतलब तीनों ही ब्रांचेस में मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। और मेरे जो भी अटेंडीज हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे किसी भी ब्रांच से, तीनों ब्रांच के किसी भी ऑफिस बियर से मुझे अभी मेल भेज दीजिए, मेरा खोला हुआ है। मैं सर To the whole जबलपुर सर हम मेल कर सारे मेंबर्स को। मेरा नंबर लिख लो 9319 9319 yes sir 9319 121214 121214। हाँ सर, हाँ, ये मेरा फोन नंबर है, इसमें आप व्हाट्सएप कर दो तो मैं अभी आपको भेजता हूँ। ठीक है सर, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी का। और सर अभी बहुत प्रेशर है हम लोगों के ऊपर, तो हम लोगों को थोड़ा अपनी सेहत पे ध्यान देना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इस कोरोना काल में जिन लोगों को थोड़ा सा योगा, प्राणायाम, वर्कआउट, थोड़ा सा मेंटल फूड, कुछ अच्छा पढ़ाई करने का, तो सबसे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं और दो मिनट और ले लूं। हाँ सर बिल्कुल। मैंने इस पीरियड में ये देखा कि जो मैंने वेद पढ़ने शुरू किए, जी जी, तो वेद हमारी सबसे पुरानी पुस्तक है, उसमें ये सब मेंशन्ड है कि ये कोरोना होगा, ऐसे ऐसे होगा और इससे कोप अप कैसे करना है, वहां सब बताया है। ये जो आप बता रहे हैं कि योगा प्राणायाम, मुझे भी हो गया था, मेरा पूरा परिवार को हो गया था, और हम लोग सिर्फ एक दिन के बाद पूरी तरह से रिकवर्ड थे, क्योंकि मैं उस पीरियड में भी योगा कर रहा था जब मुझे हुआ था। मेरी वाइफ और मैं, हम शुरू से आयुर्वेदिक पद्धति अपनाते हैं। मैंने अपने जीवन में कोई भी ऐसी चीज का सेवन नहीं किया है जो नॉनवेज हो, जो अदर देन आयुर्वेदिक हो। पूरे जन्म से आज लगभग 60 साल को होने वाला हूँ, तो वेदों पे आधारित, आयुर्वेद पे आधारित अपनी जिंदगी को डाला हुआ है। ठीक है, इनकम टैक्स से प्यार है, पत्नी से भी प्यार है, लेकिन योग से भी प्यार है, वेदों से भी प्यार है। तो वेदों से प्यार कर लो, आयुर्वेद से प्यार कर लो, ये चीजें आगे भी आएंगी। कोरोना नाम से नहीं आएंगी, कुछ और आएंगी। तो जीवन तो हमने ऐसे ही जीना है, अपने जीवन को जितना हल्का बना सकते हैं उतना बना लीजिए। यस यस, बहुत लोगों को खोया है हम लोगों ने पिछले एक साल में। मैंने देखा आगरा के 13 चार्टर अकाउंटेंट चले गए, 3 मुझसे सीनियर थे और सब मुझसे जूनियर थे। आप लोगों ने भी परिवार में बहुत लोगों को खोया होगा। तो हिम्मत मिलती है वेदों से, हिम्मत मिलती है ईश्वर को याद करके, तो उसको नहीं भूलना है। तो वो भी एक याद रखना है कि जो भी हो रहा है ठीक है, हमें अपनी जिंदगी काटनी है। और उन लोगों के लिए धनबाद ब्रांच में आपने जो घटना सुनाई आज, तो दिल तो दुखी होता है, लेकिन दिल दुखी होके करेंगे कुछ नहीं। हमें अपनी जिंदगी को आयुर्वेद पद्धति पे अपनाना चाहिए और योगा प्राणायाम करते रहना चाहिए। ठीक कहा आपने राहुल जी। तो थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सभी का, अमित जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and your family's health and your office team's health. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.